that you are carrying, that is known as what? Preamble. ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं? Are you getting it? So ये आज हम डिस्कस करेंगे. हो गया प्रवीण? उसे हो गया, टाइम लगेगा. दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन साथ लेना है इसे, तो ले. और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, बिकॉज इट विल टेक अनदर 1 or 2 minutes. Anything that you people want to ask before we start this polity and constitution? मतलब आप लोग थोड़ा डल से ऐसे बैठे हुए हैं, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है. क्योंकि देखिए मैं अभी जस्ट पहले कहीं पढ़ा रहा था, फिर आप लोग को पढ़ाऊंगा, इसके बाद भी किसी को पढ़ाऊंगा. तो देखिए वो मतलब मेरा मोटिवेशन बना रहना चाहिए, ठीक है, कि आई शुड फील वेरी मोटिवेटेड. तो कुछ पूछना नहीं है आप लोग को, जो मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ेंगे आप लोग. हाँ, बीच बीच में पूछेंगे, ठीक है. तो ठीक है, 2 मिनट थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, देन वी विल स्टार्ट. तब तक थोड़ा सा अपने बारे में आप लोग बता दिए. आपसे मैं मिल चुका हूँ पहले. क्या नाम है आपका? शिव. शिव कहाँ से हैं आप? दिल्ली से. सो हैव यू अपीयर्ड अर्लियर आल्सो? एक मिनट दिया है, ये सेकंड अटेम्प्ट रहेगा आपका, ठीक है. आपका नाम सर? पीछे धनंजय. कहाँ से हैं आप? दिल्ली से, मतलब ठीक है. और ये आपका पहला अटेम्प्ट होगा. 2021 you are going to appear, ठीक है. What's your name? वैभव. Have you met me before? No. मतलब मुझे आप लोगों ने देखा नहीं. देखिए मैं अभी तो देखिए ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है, तो मुझे लगा आप लोग मुझे जानते होंगे. अब मुझे थोड़ा अपने बहुत डाउट हो गया, ठीक है. तो क्या नाम है आपका? From where you are? Rajasthan. Have you ever given any attempt? Second attempt this time? Third attempt? So where exactly you are finding some problem? Quality में है? क्वालिटी में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, श्योर रहिए. थैंक यू. ठीक है. तो देखिए टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, दैट इज प्रीएम्बल टू व्हाट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड व्हेन आई विल अप्रोच व्हाट? प्रीएम्बल, आई विल अप्रोच फ्रॉम this particular perspective. Yeah, like I will try to explain you that why this preamble is there. What is the objective of what? Preamble. Then I will try to explain you people that whether preamble is part of Indian constitution or not. Because some people they say it is just an introduction. Some people they say that it is a prelude, it is a preface of Indian constitution. So whether it is a part of Indian constitution or not. Because if it is part, then only you can bring any alteration or modification in what? Preamble. Then only you can amend what? Preamble. So there are certain debates are what exactly is preamble, whether it is necessary to have preamble, whether it is part of preamble, whether it is part of constitution or not, whether we can amend it or not. So इस तरह की बहुत सारे क्या है? Debates are there, discussions are there. One by one, I will discuss these things. So whether preamble is amendable or not, whether preamble is enforceable or not, whatever is mentioned in preamble, on that basis, whether we can challenge state or not. So all these things are certain debate, discussions associated with what? Preamble. One by one, I will try to discuss what? All these issues that are dealing with what? Preamble. And while dealing these issues, I will also try to explain you that what was the necessity, what was the need to have what? Preamble. At the time of what? Commencement of Indian Constitution, that what was there in the mind of what? Constitution maker, with what intention they included what? Preamble. So all these things, those who are online attending classes, am I audible to all of you or not? I'm audible? All right, dear friend. Yes, so ये कुछ issues है that one by one I will discuss while discussing with you people. So यहाँ पे बोला जा रहा है कि preamble carries essence or basic philosophy of what? Indian Constitution. That when Constitution of India came into force, what kind of the India that our Constitution makers they wanted to establish? A good India that will be sovereign, socialist, secular, democratic republic with that attribute, whatever goodness that they wanted, that our new country India it should have when it will become an independent country. Everything is mentioned in what? Preamble. So if you look at preamble, you will have a fair idea that what kind of India they wanted to establish at the time of what? Commencement of Indian Constitution. ये idea आपके mind में हो जाएगा just by looking at what? Preamble. So here I am saying कि objective resolution when first sitting of the Constituent Assembly took place. कब हुआ ऐसा? First sitting of Constituent Assembly took place when? 9th
फोर्थ डे क्या हुआ? 13th December 1946, Jawaharlal Nehru introduced one aim and objective resolution. क्या introduce किया? Aim and objective resolution. That this is going to be the aim of what? This Constituent Assembly. With this intention we are going to set. We will come up with something different, unique. So that aim and objective resolution that was introduced by whom? Jawaharlal Nehru. Ultimately that emerged as what? Preamble to what? Indian Constitution. And again I am saying, it is not mandatory for all constitutions to have what? Preamble. So those who are attending online classes, if you have any doubt, you should feel free to ask dear friend. कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हैं. So then I am saying कि there are different people who have given different quotes. Yeah. So preamble को लेके there are certain kind of the questions that can be asked in prelims. So if you have to approach preamble, you should approach in a manner as UPSC has approached what? Preamble. So questions have been asked related to some important quotes. Some constitutional expert, they have said something about what? Preamble. Relating to that, UPSC has asked what? Question. Then UPSC has asked questions related to certain important words, certain important ideas that are mentioned in what? Preamble. कि liberty का meaning क्या है? In 2020 prelims they asked. Okay. So such questions they have asked. First thing they asked, important quotes, how people have described preamble. There are different people who have described preamble in a different manner. Then UPSC has asked the meaning of what? Certain important words that are mentioned in preamble. Then there is one important thing, that whether preamble was ever amended or not. If it was amended, those words which were added later on. Then next is some debate related to what? Preamble. Whether it is part, it is not part, whether it is enforceable, it is not enforceable. तो देखिए जब भी हम approach करेंगे, whenever we will approach preamble or any other topic of polity, at the beginning only I will explain you that in what manner you have to approach. So when we are approaching preamble, so different constitutional experts, they have said something about what? Preamble. Some people they are saying it is an identity card of what? Indian Constitution. Just by looking at preamble, you will have fair idea that what exactly is Indian Constitution all about. Some people they are saying it is a kind of political horoscope of what? Indian Constitution. That what all are the social, political, economic objective of what? Our constitution makers. That you will be able to see, that you will be able to understand just by looking at what? Preamble. So in this manner they are describing what? A preamble to what? Indian Constitution. हाँ देखिए सब कुछ मिलेगा, स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ मिलेगा. देखिए पढ़ तो लीजिए, स्टडी मटेरियल आई विल प्रोवाइड, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड. पहले ही मटेरियल कलेक्टर बन जाते हैं. ठीक है, आई विल प्रोवाइड स्टडी मटेरियल. ठीक है. सो हियर आई एम सेइंग, सो देखिए इन दिस मैनर पीपल आर सेइंग कि preamble carries one important thing, that it carries the source of what? Indian Constitution. That it's not like that when Britishers were leaving India, they had imposed this constitution on our people. It was your own conscious decision. Your own people, they sat, they discussed, they deliberated, and they came up with what? This particular constitution. So what preamble tells you? It tells you the source of what? Indian Constitution. और यहाँ पे बोला है कि source lies where? Source lies, dear friend, source lies in people of India. So ये जो phrase है we the people, ये जो phrase है ये हमने लिया है कहाँ से? US Constitution से. So US Constitution also starts with what? We the people. Indian Constitution also starts with what? We the people. So this phrase we the people, that we have borrowed from what? American Constitution. And this phrase we the people explains you that people are the ultimately sovereign. The source of Indian Constitution lies from what? People. हालांकि number of people they have challenged it also. They ask कि how come Constituent Assembly was an elected body? Not all people of India at that time they have voted for Constituent Assembly. So how you can say that it was people of India who came up with what? Constitution. Some 290, 300 odd people they sat and they framed what? Constitution. So that is another debate. उसके बारे में भी discuss करेंगे. But here I am just saying कि different people they are describing preamble in a different manner. Some people they are saying it is an identity card. Some people they are saying it is a horoscope. Some people they are saying it is a key to explore mind of what? Constitution maker.
Some people they are saying it carries the philosophy of what? Indian constitution. Some people they are saying it acts as a lighthouse, constantly reminding the government of the day this is the path of governance. So ये अलग-अलग तरीके से अलग-अलग लोग बता रहे हैं कि what exactly is preamble all about. But मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि for any layman, any person who has no idea about what Indian constitution, a foreigner or any other person, if he wants to know about Indian constitution, the best way is that you can have a general idea by looking at what preamble. ये बात समझ पा रहे हैं? देखिए यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है डियर फ्रेंड. दिस मच इज फाइन, ऑलराइट. ठीक है. सो देखिए ये जो preamble है आपका, preamble it serves four important objectives, four important aspects that you may get to know from what preamble. First thing I told you people that it carries what source of Indian constitution. When you say that we the people of India came up with what this particular constitution on that particular day, we have adopted, we have given it to ourselves from this particular day. So source of Indian constitution lies where? In people of India. Second thing it carries all good attribute of Indian state, that what kind of good India you wanted to establish at the time of independence. वो सारे good जो attributes हैं that are mentioned in what preamble, and these attributes are sovereign, socialist, secular, democratic, republic. So it carries description of what Indian state, such kind of good India we wanted to establish at the time of what independence. So good होना अच्छा है, good करना important है, दोनों important है, but at least doing good is more important than being good. ये बात समझते हैं. So you are a good India, but from such good India, Indian people have certain expectations, and these expectations are what? Justice, liberty, equality, fraternity. These are certain what? These are certain objectives of Indian state, or these are certain aspirations of what? People of India, and it carries the enacting clause that on this particular day we have adopted what? This particular constitution, 26 November 1949. So date of adoption is also mentioned in what? Preamble. So इस तरह के क्वेश्चन देखिए UPSC पूछ सकते हैं. They may ask you that what all idea you get from what? Preamble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऑप्शन दे दिए, and you have to pick 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 all of the above. और ऐसे केसेस में देखिए most of the time हमें लगता है all of the above ही सही है. So you have to be very precise, and because of that मैंने कोशिश की कि जो PPTs है इस तरह से बनाई है कि आपके माइंड में चीजें क्या हो, इंटरनलाइज हो, and you need not to give much effort. You will be able to understand these things in an easy manner. That is my motive. So this thing is clear to you people or not? That these ideas you get from where? Preamble. Preamble से देखिए ये ideas आप समझ पा रहे हैं. Then आप समझने की कोशिश करिए friend. Before 15 August 1947, India was what? British colony, कोई डाउट नहीं है. 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 यहाँ डाउट है बेसिकली, because you are thinking कि you became independent. You became independent dominion, but you did not become what? Independent republic. Independent republic you became when? सही बता रहे हैं, ठीक है. Then onwards you became a sovereign independent state. In case of Pakistan that date may be 1956 में कोई डेट हो सकती है. In case of your country, it is from 26 January 1950. So on 26 January 1950, you became real sovereign independent state, having your own constitution. This thing is clear to you people or not? ये बात याद रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. This thing is clear, ठीक है. Then one by one, I will discuss with you people the meaning of these terms like sovereign, socialist, secular, democratic, republic. These terms are mentioned in what? Preamble. So whenever you say sovereign, sovereign, देखिए sovereignty is an important attribute of what? State. State you people understand or not? Like India is what? State. Otherwise we जो word state है,
that is very well defined under Article 12 of Indian Constitution. But whenever you say India as a state, and whenever you say UP and Bihar as a state, दोनों में difference है, major difference है. When you say India as a state, such entity that you are referring as state, it carries 4 attributes, and these attributes are territory, population, government, and sovereignty. So India has its own territory. ये बात मानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. बिहार अपनी टेरिटरी है या नहीं? Is there? Rajasthan has its own territory. That is there. India has its own population. Gujarat has its own population. सही बात. India has its own government. Tamil Nadu has its own government. India is sovereign. Maharashtra is sovereign or not? हाँ या ना कुछ तो बोलिए. सही बता रहे. No, he's saying no. Why? Because it's not like that. Maharashtra government cannot take independent decision if government of India said that there will be lockdown. Tomorrow there will be lockdown throughout India. So Maharashtra government cannot say कि हम अपना lockdown 3 दिन बाद निकालेंगे. ठीक है? So you cannot say because there are certain administrative guidelines, directions that are issued by whom? Central government, which are enforceable on whom? State also. So India is sovereign. UP, Bihar, Rajasthan, Gujarat, they are the constituent part of a sovereign entity known as what? India. So what I mean to say, sovereignty is the most important attribute of any entity known as a state. कोई भी entity जिसको आप state बोल रहे हैं, उसका जो सबसे essential attribute है, that is what? Sovereignty. So when you say India is sovereign or any state is sovereign, तो sovereign means you are independent and supreme. आप क्या हैं? Independent है और supreme है, internally as well as externally. Internally as well as externally means there is no authority lying within India or outside India that India considers as superior authority. Are you getting my point? So whatever decisions India will take, whatever policies it will formulate, security policy, external affair policy, monetary policy, whatever policies, whatever program you are formulating, that is your own independent decision. You are not recognizing any other authority lying within India or outside India that is superior to what? India. So country is supreme and independent internally as well as what? Externally. But then we are living in era of globalization. हम किसमें रह रहे हैं? Era of globalization में रह रहे हैं. So era of globalization का मतलब ये है fan कि now in present day there are number of international organizations. So now it is the politics of international organization, starting from the United Nations. So at one point of time, all states were saying that we are sovereign, we are free to do anything and everything. और देखिए जब सारे स्टेट ऐसा बोलने लगे कि they all are free to do anything and everything, then it will be war of all against all. सबकी war हो जाएगी. That led to First World War. That led to what? Second World War. And it appeared that each one of us will destroy each other. सब कोई को क्या करेंगे? Destroy करेंगे. Then we created one entity above state known as United Nations. That was the first major international organization. Then a number of such international organizations came into existence where these states have agreed that there will be some rules of the game above the level of the state. Whether it is a political matter, whether it is an economic matter, financial matter, World Bank will be there, IBRD will be there, IMF will be there, WTO came into existence, number of regional organizations came into existence. So when you become part of what? Such international organization, you surrender certain aspect of what? Your sovereignty, and you agree that in this particular sphere, whether it is a sphere of economic cooperation, whether it is a sphere of trade, whether it is a sphere of politics, there is a consensus that sovereignty is not an absolute concept. ये absolute concept नहीं है. It is a relative concept because you have to understand कि why you are sovereign. देखिए sovereign होना जरूरी क्यों है? What if state will not be sovereign? Perhaps state may not be able to do justice with its people. They may not be able to do welfare to its people. So you are sovereign to the extent that you are able to do welfare for whom? Your people. आप अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? Welfare कर सकते हैं. उस extent तक आप क्या हैं? Sovereign हैं. यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं मनीष, अतुल,
संतोष, विवेक, this much you people are able to understand or not? हाँ तो ठीक है, देखिए बीच में बताते रहिए. All right. So here I am saying कि you are sovereign to the extent that you can do welfare for what? Your own people. But Saddam Hussein was also a ruler. People were in pain, suffering. Then international community, they interfered. Are you getting my point? So here I am saying sovereignty is an attribute that defines that a state is independent and supreme internally as well as what? Externally. But sovereignty is not an absolute concept. In the era of globalization, there are certain limits to sovereignty, and we all are member of what? International organizations, and we have agreed that within some well-defined rules and regulation, we will lead this global community. तो यहाँ पे इसी बात को मैंने explain किया है. I just explained this thing that sovereignty is an attribute of the state. It means the state is independent and supreme, and sovereignty is not an absolute concept. Don't consider it as an absolute concept. It is a relative concept that you are sovereign to the extent that you are able to do welfare for what? Your own people. And in the era of globalization, no country is absolutely what? Sovereign. So, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि when you are becoming member of these international organizations, you are compromising with the idea of what? Sovereignty. Whether it is right or wrong. जल्दी बताइए बॉस. अब आप लोगों ने समझ लिया है sovereignty का concept. When you become part of international organization, whether you are compromising with your sovereignty or not. हाँ, संदीप मिश्रा क्या बोल रहे हैं? Wrong मतलब क्या? Right मतलब क्या? Yes, अविनाश बोल रहे हैं कि हाँ compromise हो रहा है. Compromise हो रहा है. फिर तो बहुत easy हो जाएगा सारी चीजें आपके लिए. हाँ, हो रहा है. देखिए आप जब इंडिया को देखते हैं in 1947 when India became independent, at that time India was strong, or when you see India in 2021, when you consider that today's India is more strong, हाँ, तो sovereignty or your ability to take decision at the global level independently since 1947 till 2021, it has increased or diminished. Increase हुआ, मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि just by becoming part of international organization, you cannot say that your sovereignty has got diluted or diminished, because you will find that there are a number of smaller countries in African continent, and they have created an international organization, African Union. ऐसा नाम सुना है? तो African Union is an organization of number of African countries. So as an individual country, you may not be knowing much about Uganda, Burundi, Rwanda. इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा. But when any citizen from Burundi, Rwanda living in Delhi, he gets some misbehavior from any youth from Delhi, then that country is not registering protest. Who is registering protest? African Union. They register protest with India. You want to become Security Council permanent member. You have to take support from whom? African Union. And that is a 59 vote. So you have to consider us as weight equivalent to 59 countries. इसको बोलते हैं pooling up sovereignty. छोटे छोटे countries ने मिलकर क्या किया है? एक बड़ा organization बनाया है. And that organization appears very powerful in terms of negotiation, organization of Islamic countries, African Union, European Union, where you are part of such international organization, your sovereignty has increased or diminished. Increase हुआ है. इसको बोलते हैं ना pooling your sovereignty. छोटे छोटे countries अपनी sovereignty को क्या कर रहे हैं? Pool up कर रहे हैं और एक strong organization लेके आ रहे हैं. So it's not always that in the era of globalization, you will think that our ability to take decision has diminished. There are certain players like IMF, World Bank जो कुछ rules बना रहे हैं और उसके कुछ positive हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकते हैं? Negative हो सकते हैं. Debate हो सकता है for developed countries, for developing countries, whether India is able to gain much or lose from WTO or IMF. Debate हो सकता है. But in the era of globalization, we are working on shared coexistence. So that idea of absolute sovereignty is a thing of past. Contemporary opinion about sovereignty is it is a relative concept and not what? Absolute concept. ये बात समझ पा रहे हैं? This thing is clear. इसमें कोई डाउट नहीं है. Then इसी को मैं बता रहा हूँ आपको डियर फ्रेंड कि अब जो नेक्स्ट
नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था सोशलिज्म को लेकर, और सोशलिज्म की जो स्लाइड है थोड़ा सा ये चेंज हो गई है। तो देखिए सोशलिज्म, फर्स्ट थिंग सावरिन यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। सेकंड इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट या सोशलिज्म से क्या समझते हैं? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, इस तरह की बातें आप सुनते रहते हैं, एंड इन इकोनॉमिक्स डेफिनेटली यू विल हैव फेयर आइडिया। देखिए कैपिटलिज्म इज एन आइडियोलॉजिकल बिलीफ दैट रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट देयर शुड बी फ्री फोर्सेस। फ्री फोर्सेस मीन्स there should be minimum interference from the state. A state just should maintain equality before law, proper law and order. Then you should leave it on individuals. Individuals using their own talent, expertise, merit, they will compete. Private bourgeoisie will come, business class will come, and they will compete among each other. And then economy will progress through the talent and expertise of individuals. That is capitalism. उसके एकदम अपोजिट में है कम्युनिज्म। देन इन बिटवीन सोशलिज्म, वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली इज एंड व्हाट काइंड ऑफ सोशलिस्ट स्टेट इंडिया वांटेड टू एस्टैब्लिश एट द टाइम ऑफ व्हाट इंडिपेंडेंस और एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात समझने की कोशिश करिए है कि सोशलिज्म एक तरह का आइडियोलॉजिकल बिलीफ है वेयर यू आर सेइंग कि रिसोर्सेज दे विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, and when resources will be under control of government will decide how many telephone connections, how many cars, how many engineers, how many doctors our society needs. So such kind of the control will be from whom? Government. So such kind of resources and control over resources will be maintained under what? Government, and government will try to make sure that there should be minimum inequality in society and there should be maximum equality in society. तो सोशलिज्म इज एन आइडियोलॉजिकल बिलीफ रिलाइंग ऑन द आइडिया कि समाज में मिनिमम इनइक्वालिटी हो और मैक्सिमम क्या हो? इक्वालिटी हो। इट कैन नॉट बी जीरो, बट वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज व्हाट? इनइक्वालिटीज। सो दैट इज द आइडिया ऑफ व्हाट? सोशलिज्म। सो इंडिया एडॉप्टेड ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोशलिज्म, जिसको बोलते हैं गांधीयन सोशलिज्म। बट सोशलिज्म को समझने से पहले थोड़ा सा एक आइडिया आपको कैपिटलिज्म का भी देते हैं कि कैपिटलिज्म क्या है फ्रेंड्स। सो कैपिटलिज्म बिलीव्स इन free market where individual will take initiative, minimum interference will be from the state, and such minimum interference from the state, such free market, such free competition may create a situation that those who will be talented, those who will be meritorious, those who will have expertise, they will acquire more, and those who are less talented, those who are handicapped, those who are physically they have some deformity, they may not be able to acquire more. So it will create inequality in society. So wherever free market forces will be there in such society, अगर state का कोई रोल नहीं होगा, so it may lead to what? Concentration of what? Wealth, institution of private property and market forces. They are the feature of what? Capitalism. Because capitalism talks about minimum control from whom? State. And maximum responsibility of individuals, their talent, their merit, their expertise, ये सब है किसमें? कैपिटलिज्म में। इसके बीच का एक रास्ता है, there is a way in between, and that is democratic socialism. And democratic socialism believes that democratically elected governments through various socio-economic welfare programs, they will try to reduce the gap between rich and poor, between men and women, between majority and minority. So, popularly elected governments through various socio-economic welfare programs, they will try to reduce the gap between whom? Rich and poor, between one class and another class. Such socialism is known as democratic socialism, Gandhian socialism, and such socialism was introduced in what? Indian Constitution. So, Indian Constitution talks about a particular kind of socialism known as what? Democratic socialism. ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड या नहीं? Democratic socialism, you people are able to understand, dear friends, or not? आप सभी को समझ में आ रहा है? What exactly is democratic socialism? ठीक है? So democratic socialism is a kind of socialism that recognizes rights of rich as well as rights of what? Poor. So rich और poor दोनों के rights को recognize कर रहा है. So if you are earning 10 lakh rupees,
So 30% will be what? Taxation. Then also you are with having 7 lakh rupees. Means it did not like you impose taxation to the extent that a rich person became poor. अगर आपने उस पर्सन से द पर्सन हु वाज अर्निंग 10 लाख रुपीस 7 लाख रुपीस टैक्स में ले लिया, so whether that person will feel motivated or dejected? Demotivated, disappointed. So that is democratic socialism, that you are imposing taxation on the rich, and the money that you are getting, you are running various socio-economic welfare programs for whom? Poor, weaker section. So rich is enough motivated that a fraction of his richness he is contributing for the welfare of all society. ये बात समझ पा रहे हैं? So socialism you are able to understand or not? नहीं, देखिए socialism से related दो तरह के आर्टिकल्स की बात की जा रही है कि ये वर्ड जो सोशलिज्म है that was added when 42nd Amendment Act 1976. This word was added in Indian Constitution. So earlier this word was not added, but Indian state was socialist or not? ये बड़ा सवाल है. 1976 for the first time this word socialism was added in what? Indian Constitution. But 1950 till 1976 whether India was socialist or not? कैसे? जी बताइए. हाँ, नहीं गवर्नमेंट कर रही मतलब देखिए गवर्नमेंट की तो चॉइस है ना, दूसरी गवर्नमेंट आई नहीं करेगी तो आप स्टेट की बात कर रहे हैं. इंडियन स्टेट वाज सोशलिस्ट और नॉट? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट और स्टेट में अंतर है. गवर्नमेंट आएगी और जाएगी, गवर्नमेंट चेंज होती रहेगी, बट स्टेट तो एक ही रहेगा. सो वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन स्टेट एज अ सॉवरेन स्टेट. हाँ सही बता रही है, वेरी गुड. तो देखिए डीपीएसपी में कुछ चीजें ऐसी हैं लाइक आर्टिकल 39B आगे आके डिस्कस करेंगे, 39C 40 41 ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं. दे ट्रूली टॉक्स अबाउट सेकुलर कैरेक्टर ऑफ सोशलिस्ट कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट. सो आगे आके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बिहेवियरल टर्म में, फंक्शनिंग में इंडियन स्टेट वाज व्हाट? सोशलिस्ट. इवन दो दिस वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड व्हेन 1976, बट फ्रॉम 1950 till 1976 India was acting as what? Socialist state. As he said, a number of welfare programs were being run by government because government knew that there is a value of what? Socialism mentioned in directive principle of what? State policy. ये बात समझ पा रहे हैं? याद रख समझ आ रहा है? देखिए जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है फ्रीली आप पूछ सकते हैं, वो भी आप लोग का राइट है. नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं तो गलत बात है. नहीं देखिए कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. दिस थिंग इज ऑलवेज देयर. तो ये एक मैंने कॉन्टिन्यूम बनाने की कोशिश की है आपको ये एक्सप्लेन करने की कि ऑन दिस स्केल यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म आई एम सेइंग दैट मिनिमम कंट्रोल फ्रॉम होम? स्टेट. इन सोशलिज्म आई एम सेइंग देयर विल बी कंट्रोल फ्रॉम होम? स्टेट. स्टेट विल ट्राई टू कंट्रोल रिसोर्सेज. बट व्हेन यू सी कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, they try to explain idea of what? Communism. And in communism, a kind of authoritarian setup will be there, autocratic setup will be there, and they will try to govern each and everything. कि किस घर में कितनी रोटियां जा रही हैं, what will be there, what you will have, what you will not have. Extreme control will be there, and they will try to remove institution of private property. That is communism. So extreme kind of socialism is what? Communism. ठीक है? Where extreme control will be there from the state. Private property will not be there. They will try to keep extreme check on people's. Individuality will be minimum in case of what? Communism. But Indian state, they have went for what? They went for democratic socialism, that in between capitalism and what? Socialism, where state is also there, private player is also there. Since 1950 till 1991, there was a kind of socialistic economy. Then you went for economic reforms, mixed economy की आप बात करते हैं. It is an idea of what? Democratic socialism. This thing you people are able to understand. ये बात समझ पा रहे हैं? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है डियर फ्रेंड, जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं? आप पूछिए.
ये तीनों पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम है, क्या है? दे आर पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जब भी आप बात करते हैं ना इकोनॉमी की, इकोनॉमी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, स्टेट इज द मीडिएटर। पूरी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो भी आप पढ़ रहे हैं जीएस में, वो सब स्टेट को फोकस में लेके चल रहे हैं। किसको लेके चल रहे हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कौन ला रहा है? स्टेट। बैंकिंग सिस्टम किसका है? स्टेट का है, ठीक है। तो जो आपका एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा है, कौन कर रहा है? स्टेट पॉलिसी। तो आप एक्चुअली ये देख रहे हैं कि स्टेट का रोल क्या है। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट सोशलिज्म, whenever you talk about what? Communism, whenever you talk about capitalism, whenever you talk about democratic socialism, these all concepts are what? Politico-economic concept. What we are debating, role of state. Economic affairs में, production में, distribution, consumption में, state का role क्या होगा? उसके basis पे आप क्या decide कर रहे हैं? कि ये capitalist है, ये socialist है, ये communist है, ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? डिपेंडिंग अपॉन रोल प्लेड बाय हूम? स्टेट। ये बात समझ पा रहे हैं? उसी के बेसिस पे आप ये सारी बातें बोल रहे हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड, डियर फ्रेंड, और नॉट? ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? दिस मच इज क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये मैंने बताने की कोशिश की है। देखिए ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके थ्रू आप समझ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द सोशलिज्म यू आर प्रैक्टिसिंग। जमींदारी एबोलिशन एक्ट लाया आपने, बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट यू ब्रॉट, प्रीवी पर्सेस एबोलिशन आपने किया, नंबर ऑफ सच थिंग्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इंडियन स्टेट डिड just to show that they are practicing a kind of democratic socialism. So ये सारे aspect है। Immediately after independence you are bringing what? Land reforms, this thing you know. Then number of public sector undertakings you have established, that you know. Then nationalization of banks you went for. Monopolies and restrictive trade practices act आपने लाया था, just to restrict monopolies. Then 39 B and C आगे आके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, in order to prevent concentration of wealth in few hands. So all these steps you have taken just to show your commitment towards what? Socialism. This thing you people are able to understand. ये बात समझ पा रहे हैं? Then next thing I am going to discuss with you people, that is what is the meaning of secular. Secular है आप लोग या नहीं? हैं? Means what made you think that you are secular? कैसे आपको लगा? किसी ने बताया या खुद आपको लगा कि मैं सेकुलर हूं? कैसे? मतलब इस पूरी डिफिनेशन में कहीं भी आपने रिलीजन का यूज नहीं किया है। रिलीजियस आइडिया की बात कर रहे हैं आप, और अपने रिलीजियस आइडियाज आपके फ्रेंड जो पीछे बैठे हैं, क्या नाम है आपका? धनंजय। धनंजय पर आप इंपोज नहीं कर रहे हैं, मतलब यू आर सेकुलर। बट व्हाट इफ यू आर ट्राइंग टू इंपोज, ही इज नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस। आप इंपोज करना भी चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? बट आप ठीक है, आप बता भी रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, मतलब आप सेकुलर बन पाए या नहीं बन पाए? मतलब एक ऐसे फीलिंग है, फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये सेकुलर है या नहीं, शी इज सेकुलर और नॉट? कुछ तो होना चाहिए ना। देखिए ऐसे तो सब क्लास में बोलेंगे हम सब क्या है, सेकुलर है, और पूछूंगा तो क्या बताएंगे? बस ऐसे ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई फील, बट कुछ तो बताएंगे। बट आइडियाज तो आपके अंदर है ना। देखिए मेरी बात समझिए, योर आइडियाज आर इनसाइड यू, ठीक है। तो व्हेनेवर यू से दैट इंडिविजुअल इज सेकुलर और स्टेट इज सेकुलर, स्टेट सेकुलर है ये तो मैं बताऊंगा, ये मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए मुझे पेमेंट मिल रहा है। whether state is secular or not, that I will explain, because preamble explain करना is my duty. But as an individual, आप क्या नाम है आपका? आप सेकुलर हैं?
सब देखिए सब यही बोल रहे हैं कि सब सेकुलर हैं, तो कैसे? आपकी बातों से मुझे क्या लगा कि आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं, मतलब आप सेकुलर हैं। सपोज नो अदर रिलीजन इज देयर, नो अदर रिलीजन इज देयर, कोई और रिलीजन है ही नहीं, फॉरगेट अबाउट अदर रिलीजन, ओनली सपोज वन रिलीजन इज देयर, यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, फॉर एग्जांपल ए क्रिश्चियन सोसाइटी, इस्लामिक सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी, एनी सोसाइटी, नो अदर रिलीजन इज देयर, मतलब ये बताने की जरूरत ही नहीं कि मैं दूसरे रिलीजन की रेस्पेक्ट करता हूँ या दूसरे रिलीजन वाले के साथ क्या करता हूँ, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। आप ही के रिलीजन के लोग रह रहे हैं, क्या उस सोसाइटी में यू कैन नॉट बिकम सेकुलर? हो सकते हैं, उस सोसाइटी में भी हो सकते हैं। एक ही रिलीजन है आपकी सोसाइटी में, कर सकते हैं कैसे? हाँ सही, कैसे कैसे? वो ये तो नहीं बोलते होंगे कि सर बस ऐसे ही है, मतलब इसेंस है, मतलब कुछ तो होता है। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि यू शुड बी वेरी क्लियर if you are preparing for what UPSC civil services, for each and everything you should be very clear. The more clarity you will have, more precision you will have, less chances of committing mistakes will be there in prelims, considering prelims में जो filtration process है सबसे ज़्यादा है, lakhs of the aspirant will appear, few thousand will come out, इतना मेंस में भी नहीं है, इतना इंटरव्यू में नहीं है, so ये सबसे ज़्यादा filtration हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? prelims में हो रहा है। Why? Because it requires something. It requires something what? Clarity, conceptual clarity. You should be totally clear. If they are giving 4 options, you are able to filter it out कि ये तो liberty का meaning है ही नहीं, ये तो secular का मतलब है ही नहीं। तो secular means what? Secular means a person, हाँ बोलिए। नहीं, रोक जब आप रोकने वाली बात करते हैं तो कोई सेकेंड पर्सन आ जाता है, स्टेट आ जाता है, कोई इंडिविजुअल आ जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आता है, बट कोई नहीं है, मान लो कोई है ही नहीं। आप अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए कि आप सेकुलर हैं, आपको दूसरे की जरूरत क्यों पड़ रही है कि कोई मुझे रोक नहीं रहा है, कोई स्टेट मुझे नहीं रोक रहा है, कोई दूसरे धर्म वाले की मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी को इम्पोज नहीं करता हूँ, मतलब हर बार आप एक्सप्लेन करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप दूसरे बुला रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ इसलिए मैं सेकुलर हूँ, मतलब ऐसा कोई दया कर रहे हैं किसी पे, कि इम्पोज नहीं कर रहे हैं, उसे परेशान नहीं कर रहे हैं, कोई और आप पे कुछ दया कर रहा है। बट व्हेन यू आर सेइंग कि यू आर सेकुलर, यू कैन एक्सप्लेन योरसेल्फ यूजिंग योरसेल्फ, नॉट नीड, देयर इज नो नीड ऑफ एनी थर्ड पर्सन, देयर इज नो नीड ऑफ एनी सेकंड रिलीजन, देयर इज नो नीड ऑफ एनी स्टेट, कि nobody is preventing me, nobody is harassing me, I am not harassing anywhere, then I am what? सेकुलर। तो ये इससे कहीं ना कहीं ऐसा भाव आ रहा है कि आप खुद को एक्सप्लेन करने के लिए आपको जरूरत पड़ रही है किसकी? किसी थर्ड एंटिटी की, सेकंड, ये बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए, व्हेन यू से कि यू आर सेकुलर मींस यू आर सेकुलर एज एन इंडिविजुअल, यू आर सेकुलर, और व्हेन इंडिया सेज इंडिया इज व्हाट? सेकुलर, सो इंडिया इज सेकुलर, ठीक है? तो इंडिया ये नहीं बोलेगा ना कि पाकिस्तान ऐसा करता है बट हम ऐसा नहीं करते, इसलिए हम क्या हैं? सेकुलर है। आप सिंपली बताएंगे कि आई एम सेकुलर बिकॉज I am less guided by customs, superstition, traditions, and more guided by what? Science, logic, reasoning. Then slowly and gradually I am becoming what? Secular. Yeah. So person is secular when person is deviating away from what? Superstition. When person is deviating away from what? Customs, traditions, superstition. ये सब पार्ट हो सकते हैं किसके? एक ऐसे पर्सन के जो एक्सट्रीमली रिलीजियस है कि ट्यूसडे को ये नहीं करना है, थर्सडे को ये नहीं करना है, सैटरडे को नहीं करना, सैटरडे नहीं, और कुछ दिन ये करना है, थर्सडे को नॉर्थ में नहीं जाना है, बिल्ली ने रास्ता कर दिया ये नहीं करना है, मतलब ये सब कहीं ना कहीं वेमेन ये नहीं कर सकती, मेन ये कर सकते हैं, ये उनके लिए नहीं है, मतलब ऑल दीज थिंग्स दे आर मेंशन इन रिलीजियस टेक्स्ट। कहाँ पे मेंशन है? रिलीजियस टेक्स्ट में। So when slowly and gradually you are moving away from what? Such superstition, such customs,
such traditions, and you are coming closer to what? Science, reasoning, logic. Individual level पर आप क्या बोलेंगे कि आप क्या बन रहे हैं? Secular बन रहे हैं. Or the state is secular when the state has no official religion. When the state is neutral in terms of what? Religious affair, in thought as well as what? In practice. Then such state will claim that it is what? Secular state. So secular state is one that has no official religion. A secular state is one that is neutral on what kind of matter? Religious matters. So such state is secular. Individual is secular or not? ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. तो एट एन इंडिविजुअल लेवल आपने क्यों बोला कि आप सेकुलर हैं? क्योंकि आप लोग का अप्रोच अब साइंटिफिक हो चुका है. लाइक इफ आई आस्क यू पीपल कि 8 मंथ तक लगातार ओम नमः शिवाय बोलिए और यूपीएससी क्रैक हो जाएगा, तो मानेंगे आप लोग? बट रिलीजियस टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है ना कि लोगों ने ऐसा किया, शिव आए, बस क्या चाहते हो? आपने बोला यूपीएससी ले, जिसे तथास्तु ले. तो ऐसा लिखा हुआ है नहीं लिखा है कि ये वहां हिमालय में चले गए, वो वहां चले गए, उनको ये वरदान मिला, शिव इनका नाम ये. तो देखिए व्हाट आई एम सेइंग. बट इफ आई आस्क यू पीपल कि 8 मंथ तक 8 आवर्स पर डे आप पढ़ाई करो, प्रोबेबली यू विल बी एबल टू क्रैक व्हाट? यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, whether you people believe it or not. Why? Because now you have become more logical. You are guided by scientificism, rational approach. And that's why without knowing the meaning of secular, all of you said that you are what? Secular. Because somewhere you have realized that being secular means being good. ये आपके माइंड में जो आपने एजुकेशन लिया, that made you to believe कि secular होना अच्छी बात है. And that's why when I asked, even though you people had no clear-cut definition of what? Secularism, but all of you said that we are what? Secular. So secular state means a state that is neutral on what kind of matter? Religious matter. So state does not believe in a particular religion. That state is what? Secular state. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सेकुलर का मतलब कुछ और है. ये हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है फ्रेंड? ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं. हाँ पूछिए. तो देखिए, आप रिलीजन में बिलीव नहीं करते हैं. यू डोंट बिलीव इन रिलीजन, दैट इज व्हाट? नहीं, आपका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है, बट यू डू रिकॉग्नाइज दैट इंडियन सोसाइटी इज अ रिलीजियस सोसाइटी. शिवरात्रि पे आपने गैजेट हॉलीडे दे दिया, ठीक है, आपने क्रिसमस पे क्या दे दिया? हॉलीडे दे दिया, सो दैट पीपल कैन पार्टिसिपेट इन व्हाट काइंड ऑफ मैटर्स? Religious matter means you do recognize that society is religious. लोगों को आप ले जा रहे हैं कहाँ पे? कैलाश मानसरोवर, आप इजराइल ले जा रहे हैं, आप करतारपुर कॉरिडोर बना रहे हैं. Means you do recognize that religion is there and you are supporting religion, but without any discrimination. क्या नहीं कर रहे हैं? Discrimination नहीं कर रहे हैं. ये आप समझ रहे हैं? तो ये मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि देखिए सेकुलरिज्म हम समझेंगे कि सेकुलरिज्म क्या है. तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि state is neither irreligious nor anti-religious, but it is non-religious in character. You are not against any particular religion. ना कि आपका कोई अपना religion है. Neither you think that religion is not there. Indian state recognizes that religion is there, and people are religious. Society is religious, but there is no official religion of what? Indian state. That is the meaning of what? Secular India. ये बात समझ पा रहे हैं? This thing is clear. क्या नाम है आपका? आप हाँ, अनिकेत. You are able to understand? हाँ, कोई डाउट नहीं है. Then यहाँ पे ऐसा बोले कि Indian secularism is different from what? Western secularism. स्विट्जरलैंड में भी क्या हुआ है? न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग? क्या पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये तो दिक्कत वाली बात है. फ्रांस में एक लॉ आया है, सुना है आप लोगों ने? स्विट्जरलैंड में एक लॉ आया है, हाँ आया है. इसके पहले फ्रांस में एक डिबेट चली थी, एंटी रेडिकलाइजेशन लॉ आया था. सो व्हाट आई एम सेइंग कि वेस्टर्न यूरोपियन जो सोसाइटी है, दे ट्राई टू मेंटेन a clear-cut segregation between religious matters and political matters. हाँ सही बता रहे हैं, ईशान सही बता रहे हैं. ईशान वेरी गुड. उमेश, I am going to explain it again. Don't worry. What I am saying, in Western societies there is a clear-cut separation between religious matter and what? Political matters.
church should not interfere in politics, political leaders should not interfere in the matters of what? Church. But in India, it is not like that. In India, there is a close interaction between political matters and religious matters. Here, state support religion, promotes religion, but without what? Without discrimination. Without discrimination, you are promoting all religious groups, and you believe that all those religious groups that have made India as its home, they have right to coexist peacefully. So there is no right to existence. There is right to what? Coexistence peacefully for everyone. This thing you people are able to understand or not? ये और समझ रहे हैं? ये एक यूनिक सेकुलरिज्म है किसका? इंडिया का, जो आगे जाके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. आर्टिकल 25 to आर्टिकल 28, it deals with what? Secularism in context of what? Indian society. ये और समझ रहे हैं? Then next हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. हमने आपके साथ डिस्कस किया sovereign, socialist, secular. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक चीज़ समझ आ रही है. सो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि इंडियन स्टेट सपोर्ट रिलीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो इंडियन सेकुलरिज्म है, इट इज बेस्ड ऑन पॉलिसी ऑफ सर्वधर्म समभाव. ये बात समझ पा रहे हैं कि इक्वल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स व्हाट? ऑल रिलीजियस ग्रुप्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से क्या है, दुश्मनी है. इक्वल ओरिएंटेशन फॉर व्हाट? ऑल. दीपक पानी दे दो, पानी. Then यहाँ पे फिर से वही बात आ गई कि this word secular was added when in 1976, but before 1976, whether Indian state was secular or not. उससे पहले 50 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया, 76 तक. हाँ 40, यहाँ पे 44 दिखाया गया, 42nd है, 1976 में 42nd है. But what was India from 1950 to 76? Whether it was secular or not? कैसे था? Article 25 से लेकर 28, they were dealing with what? Secular functioning of what? Indian state. आगे हम डिस्कस करेंगे. When we will discuss fundamental right, we will discuss Article 27 also, that truly spell out secular character of what? Indian state. That also we will discuss. But secular state का मतलब समझ में आ रहा है? India is secular. This thing you people are able to understand. Sandeep, Umesh, Ishan, Manish. यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड. मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. परफेक्टली समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है. देन देखिए नेक्स्ट एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं, डेमोक्रेटिक. ठीक है, डेमोक्रेसी मींस व्हाट? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? फिर रिपब्लिक का मतलब क्या होगा? पार्टिसिपेशन है. ठीक है, रूल ऑफ डेमोस बोलना है. क्या बोलना है? Rule of demos, people's rule. People will participate in decision making. People will decide who will govern them, either through method of election or any other method. So you are saying a state is democratic when rule of demos is there, when people are going to decide that who will govern them, when people they have participation in what? Important decisions that are being taken, then you will say that that society or that polity is what? Democratic. Democracy can be of two type, direct हो सकता है, indirect हो सकता है. India adopted what? Indirect or representative kind of what? Democracy, where we elect our own representatives, and these representatives on our behalf, they go, they sit in these legislature, and they enact law on our behalf. So they exercise supreme power on behalf of us. Such kind of democracy is known as what? Representative democracy. ये बात समझ पा रहे हैं? इसमें कोई डाउट नहीं. तो ये इसी बात में यहाँ पे लिखा गया है कि डेमोक्रेसी मीन्स वेयर पीपल डिसाइड दैट हु विल गवर्न देम, एंड नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, इंडियन डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म डेमोक्रेसी. व्हाट एग्जैक्टली इज पार्लियामेंट्री फॉर्म आगे आके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. बट आवर पॉलिटिकल सिस्टम इज व्हाट? डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम. दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट डियर फ्रेंड? ये बात समझ पा रहे हैं? देन इसके आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे
टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये है। तो देखिए कई बार अभी हमने आपके साथ स्विट्जरलैंड की बात की थी, तो वहाँ पे जो मैटर डिसाइड हुआ किसके थ्रू हुआ? हाँ, रेफरेंडम के थ्रू डिसाइड हुआ। एक रेफरेंडम कराया गया वहाँ पर, ठीक है, वेयर पीपल दे हैव वोटेड फॉर समथिंग और दे हैव वोटेड अगेंस्ट समथिंग। सो दीज आर द डायरेक्ट टूल ऑफ व्हाट? डेमोक्रेसी। रेफरेंडम की बात हो रही है, प्लेबिसाइट की बात हो रही है, इनिशिएटिव की बात हो रही है, रिकॉल की बात हो रही है। These are the instrument of what? Direct democracy, where people they themselves decide. They introduce legislation. They recall their elected representative. That is a direct tool of what? Democracy, but that can be applied for smaller societies. जहाँ पे नंबर क्या है? Less है, 1000, 2000, 20,000. यहाँ तक आप कर सकते हैं. But for such a large society like what? India, you are practicing what? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। हाँ, तो वहां पे पार्लियामेंट नहीं है। स्विट्जरलैंड में अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो अविनाश पार्लियामेंट है नहीं वहां पे। स्विट्जरलैंड में क्या है? स्विट्जरलैंड में पहाड़ है, नदियां, उसके अलावा क्या है? देखिए ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या नहीं है? आपने बोला डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। बट पार्लियामेंट भी है वहां पे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा अगर यूपीएससी ऐसा कोई सवाल पूछते हैं, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि स्विट्जरलैंड में पार्लियामेंट नहीं है। लोकल लेवल पर वहां पर क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वार्ड लेवल पर वहाँ के अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं, बट दे ऑल्सो हैव व्हाट? पार्लियामेंट। बट एज शिव सेड, इन्होंने बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे लोगों से डायरेक्ट ओपिनियन मांगा जाता है, एंड दिस इशू वाज वन इंपॉर्टेंट इशू वेयर पीपल हैव वोटेड इन फेवर ऑफ यस और इन फेवर ऑफ व्हाट? नो। ठीक है, ऐसा आप इंडिया में भी करा सकते हैं, ग्राम सभा के लेवल पे ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए टूल्स ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात बता रहे हैं कि आज जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन, उसके पीपल दे कुड पार्टिसिपेट, एंड उसके लिए बहुत सारी नई नई चीजें आ गई हैं। ठीक है, आरटीआई आ गया है, ठीक है, सिटीजन चार्टर की बात होती है। आप कोशिश करते हैं पार्टिसिपेशन को इश्योर करने की कि पीपल दे शुड पार्टिसिपेट इन व्हाट? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, संयुक्त किसान मोर्चा है, क्या कर रहा है? प्रोटेस्ट कर रहा है, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, सच इंटरेस्ट ग्रुप, दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन सस्टेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ व्हाट? डेमोक्रेसी। ये बात समझ पा रहे हैं? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। यहां तक बातें समझ में आ रही है ऑनलाइन क्या नहीं? हाँ, रेफरेंडम की बात मुन्ना बता रही है, तो मनीष, दिस मच यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, अब देखिए इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक का, और यहाँ पे देखिए तो दो पिक्चर इंट्रोड्यूस किए। ब्रिटिश रॉयल फैमिली जो भी बहुत कंट्रोवर्सी में है, ये आप जानते हैं, रेसिज्म की वजह से बात ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं। सो ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी है, बट देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वेयर द हेड ऑफ द स्टेट, मोनार्क, आइदर किंग और क्वीन, दे आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी दे गेट देयर अपॉइंटमेंट। बट रिपब्लिक स्टेट इज वन where head of the state is an elected, either elected directly or indirectly. So after Ramnath Kovind ji, who will become the president of India? अब ये नहीं हो सकता कि वेंकैया नायडू जी बनेंगे, because there will be election. क्या होगा? इलेक्शन होगा, आडवाणी जी बन सकते, कोई भी बन सकता है। तो here I am saying, but in Britain it is fixed. Prince Charles is waiting since long कि when Queen will go and I will become king, जो कि हो नहीं पा रहा है। So here I am saying, so there it is already fixed that if this fellow will go, some other person will come on principle of what? Heredity. वहाँ पे ये पहले से decided है कि if Queen goes, then Charles will come, then William will come, then Harry will come, then George will come. मतलब पहले से क्या है? वो decided है वहाँ पे. That is not there in case of India. So republic का मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? Are you getting this thing? नहीं, लोकल लेवल पे देखिए आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज कर रहे हैं बेसिकली। अदरवाइज जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन में दे केम अप विद व्हाट? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी।
और लोकल लेवल पे भी आप देखें तो एक्सेप्ट ग्राम सभा के लेवल पे बाकी लेवल पे इलेक्शन कैसा है, इनडायरेक्टली, और लार्जली जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इनडायरेक्ट तरीके से लिए जाते हैं, ठीक है, ओनली ग्राम सभा लेवल, ठीक है। हमने इस इंस्ट्रूमेंट को लाके डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू आप क्या अचीव कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू अचीव पार्टिसिपेशन ऑफ व्हाट पीपल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि आपके रोड पे जहां द एरिया वेयर यू आर लिविंग, इफ आई आस्क यू द एरिया वेयर यू आर लिविंग वहां पर क्या क्या होना चाहिए, तो एटलीस्ट आप 1-2 मिनट तक बता सकते हैं कि वहां पर ये होना चाहिए, एक कम्युनिटी हॉल होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट जलनी चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड होना चाहिए, बारात आने के लिए घर होना चाहिए, दीज थिंग यू कैन टेल, बट एट इंडिया लेवल व्हाट शुड बी देयर, मतलब ये आप तभी बता पाएंगे जब यूपीएससी की आपने क्या किया है, प्रिपरेशन किया, अदरवाइज यू से ना प्राइम मिनिस्टर से पूछे क्या होना चाहिए, बिकॉज एट नेशनल लेवल, एट प्रोविंशियल लेवल व्हाट शुड टेक प्लेस you may not have fair idea, but at local level what should take place you have what fair idea, कि आपके विलेज लेवल पर क्या होना चाहिए उसको लेके आपको फेयर आइडिया है, तो यू ट्राई टू इंट्रोड्यूस एट व्हाट लेवल, ग्रास रूट लेवल, ये हो सकता है, नॉट ऑल लेवल। सो लार्जली इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा ऑप्शन नहीं बनाएंगे, देखिए अगर ऐसा ऑप्शन बनाएंगे तो सिंपली आप लिखेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, लोकल लेवल भी तो आप लिखेंगे ना, देखिए अगर इतना स्पेसिफाई करके पूछेंगे तो इजी नहीं हो जाएगा कि लोकल लेवल पर क्या है, ग्राम सभा के लेवल पे, तो ग्राम सभा पे तो क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये हो सकता है, दिस थिंग इज क्लियर, पूछिए और भी पूछना चाहते हैं, एनीवेयर, हाँ, तो अगर वो ऑप्शन है तो आप बता सकते हैं ग्राम सभा के लेवल पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आइए आप बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, और कोई डाउट, ये रिपब्लिक समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन डियर फ्रेंड, हम ऐसा बोले हैं कि ये जो इंडिया है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दैट इंडिया इज ट्राइंग टू अचीव सर्टेन थिंग्स, एंड फ्रॉम सच गुड इंडिया, Indian people they have certain expectations, and what are those expectations? These expectations are like justice. So Constitution of India, it tries to provide you a very comprehensive kind of justice, political, social, economic kind of justice. Social justice later on we will discuss, mentioned from article 14 to 18. Political justice I will explain under article 326, where every person who has attained the age of what, 18 years, he or she has right to register himself as a voter and can participate in what, election. Then economic justice, redistributive justice, that is mentioned in what, directive principle of what, state policy. ये हम आगे जाके आपके साथ डिस्कस करेंगे when I will discuss with part 4 known as DPSP. So in this manner, this idea of justice is what mentioned in Indian Constitution. So देखिए justice is mentioned, तीन तरह के justice की मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड व्हाट, सोशल जस्टिस, फर्स्ट स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया था। सो देखिए ये जो आइडिया फ्रेंड, आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन। ये कुछ नई इंफॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है, ये अपने माइंड में आप रख सकते हैं, ये अगर कभी पूछ लिया गया तो है, अदरवाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट दिस आइडिया ऑफ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ जस्टिस we have taken from what, Russian Revolution. Then next is dear friend liberty, और ये liberty पूछा है 2020 में, और मैक्सिमम लोगों ने गलत किया है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने बस पढ़ के गए थे लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ, बिलीफ, वर्शिप याद करके चले गए थे, पर जब उन्होंने पूछा तो लोगों ने गलत कर दिया, बिकॉज उन्हें लगा कि ये तो डिफिनेशन है ही नहीं, बिकॉज प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है, बट एनसीईआरटी में मेंशन है। कहाँ मेंशन है? एनसीईआरटी में, जिसको हम फिनिश करके रख देते हैं, नहीं कि हम एनसीईआरटी को क्या करना है, मतलब मोस्टली हम क्या करते हैं 6 से 12 की एनसीईआरटी फिनिश कर लेनी है, फिर पढ़ना स्टार्ट करना है लक्ष्मीकांत सर की बुक को। तो देखिए ये माइंड में हम एटीट्यूड लेके चलते हैं, बट मेनी ऑफ द क्वेश्चंस दे आर, मेनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दे आर वेरी वेल एक्सप्लेन इन व्हाट, एनसीईआरटी। लिबर्टी भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी में काफी अच्छे से मेंशन है, और लिबर्टी का मतलब ये है जो आप बोल रहे थे कि यू आर फ्री टू डू थिंग्स दैट यू थिंक बेस्ट फॉर व्हाट, योरसेल्फ, कि आपके लिए जो बेस्ट है वो आप कर सकते हैं, एंड इट इज एसेंशियल फॉर योर ओन डेवलपमेंट। आपके अपने डेवलपमेंट के लिए क्या है, वेरी एसेंशियल है,
but while not violating rights of others. So when you were living like a primitive man, जब आप forest में रहते थे as a primitive man, at that time also you were free to do what? Anything. That was the idea of animal existence. But it is not the kind of animal existence that you are free to do things that you want best for yourself. You are free to do things for yourself without violating what? Others' right. दूसरों के राइट को क्या नहीं करना है, वॉलेट नहीं करना है. मतलब ऐसा नहीं कि आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है तो मूव करते करते आप दूसरे के घर में चले गए, क्या चल रहा है देखते हैं. ऐसा देखिए, इतनी फ्रीडम नहीं है. तो ये बात समझ पा रहे हैं. सो अपॉर्चुनिटीज फॉर व्हाट? अपॉर्चुनिटीज फॉर development of individual personalities, that you should be able to bring it out from you, that what you always wanted to become. That many time it happens na ki then in your childhood how much oil you should use in your hair, that is also decided by whom? Parents decide karte hain. But slowly and gradually that painter inside you comes out, that scientist inside you comes out, that cricketer inside you comes out. ये तभी हो पाता है जब आप ये रियलाइज कर पाते हैं कि देयर इज अ म्यूजिशियन इनसाइड यू, देयर इज अ सिंगर इनसाइड यू. और ये अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिलती आपको तो आप सिविल इंजीनियरिंग करने चले जाते हैं और उसी में ड्राइंग करते रहते हैं. ऐसा ये मतलब कहीं ना कहीं तो करेंगे बिकॉज यू आर ए पेंटर, और कुछ लोग कभी नहीं कर पाते. तो दिस लिबर्टी इज मस्ट टू रियलाइज व्हाट योर ट्रू पोटेंशियल, हु यू आर एक्चुअली. ये बात समझ पा रहे हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टेन काइंड ऑफ द लिबर्टी, दैट इज लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात होती है यहाँ पे, और लिबर्टी ऑफ फेथ, वर्शिप, इनकी बात होती है डियर फ्रेंड. तो देखिए बोले कि जो प्रियम्बल है इंडिया का, इट सिक्योर्स फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप. इस तरह की 5-6 लिबर्टी की बात की जा रही है. ये याद रहेगा आप लोग को. दिस थिंग यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डज इट लिबर्टी मीन्स. सो लिबर्टी के बाद हम बात करेंगे इक्वलिटी की. ठीक है, देखिए इक्वलिटी की बात. हाँ बोलिए. और पीछे नहीं, एब्सेंस ऑफ कंटेंट. ये सिंपल मतलब है किसका? लिबर्टी एज ए कॉन्सेप्ट, जिसकी बात की रूसो ने, लॉक ने फिलोसफिकल लेवल पे, कि जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, अगर वो फ्री फील करेगा, इफ ही विल बी फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया कि उस फ्रीडम पे क्या होनी चाहिए? लिमिटेशंस होनी चाहिए. यू कैन नॉट बी फ्री इन द एब्सोल्यूट सेंस. यू आर फ्री टू द एक्सटेंट कि दूसरों की फ्रीडम पे आप क्या नहीं कर रहे हैं, वॉलेट नहीं कर रहे हैं. ये बात समझ पा रहे हैं? नहीं कोई बात नहीं, आई अंडरस्टूड. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दैट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी. नहीं कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो ये मतलब समझ पाए. लिबर्टी इन एब्सोल्यूट सेंस मीन्स एब्सेंस ऑफ व्हाट, ये वर्ड का मीनिंग है. यस, उसके आगे लिमिटेशन है. यस, हाँ लिमिटेशन है. ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट मतलब है, बट आगे जाके इस पे क्या है? लिमिटेशंस है. ये बात समझ पा रहे हैं? जैसे बात होती है ना कि लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको है, बट आप सेडिशन लॉ लगा देते हैं, जेल में लेते आते हैं कि लिबर्टी थी, बट उस पर क्या थी जो आप बोल रहे थे? लिमिटेशन है, लिमिटेशंस हैं. और लोग बोले कि लिमिटेशन ज़्यादा है, लिमिटेशन ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही कुछ बोल रहे हैं आप सेडिशन लॉ लगा दे रहे हैं. और आप बोल रहे हैं कि लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, लिबर्टी ऑफ बिलीफ. इस पे कुछ ना कुछ लोगों को लग रहा है, क्या लग रहा है? रिस्ट्रिक्शन लग रहा है. नए रूल्स गवर्नमेंट ने लाए सोशल मीडिया को लेके, नए रूल लाए OTT को लेके. उसमें कुछ प्रोड्यूसर ऐसा बोल रहे हैं कि उनकी क्रिएटिविटी यही है कि जो दिखा रहे हैं, और उस पर सरकार क्या कर रही है? रिस्ट्रिक्शन लगा रही है. तो देखिए, योर लिबर्टी इज वेलकम, बट वी आर नॉट लिविंग इन आइसोलेशन, वी आर लिविंग इन सोसाइटी. हम कहाँ पे रह रहे हैं? सोसाइटी में रह रहे हैं. वी आर नॉट लिविंग इन फॉरेस्ट. इन फॉरेस्ट वट एवर यू केम इन योर माइंड, जो भी आपके माइंड में आया इंस्टिंक्ट के फॉर्म में, आपने उसे ड्रॉ कर दिया और लोगों के सामने लेके चले गए. सो देयर इज अ डिसेंसी, देयर इज अ मोरालिटी, देयर आर वैल्यूज, देयर आर सेंटिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, सबके रिलीजन. तो उन सबकी क्या है? लिमिटेशन है. ये बात समझ पा रहे हैं? यहाँ तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई डाउट नहीं है. देखिए, दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड और नॉट? ये समझ में आ रहा है?
ऑलराइट, अब देखिए इसी बात को आगे डिस्कस करते हैं। यहां तक समझ में आ गया था, लिबर्टी वॉज क्लियर। लिबर्टी डज नॉट मीन्स लाइसेंस। देखिए ये मैं बताना चाह रहा था, लिबर्टी डज नॉट मीन्स लाइसेंस टू डू वॉट वन लाइक्स एंड हैज टू बी enjoyed विद इन द लिमिटेशन मेंशन इन वॉट कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिमिटेशन है, आप जिस तरह की लिबर्टी एक्सरसाइज करेंगे। वेन एवर आई विल डिस्कस freedom of speech and expression, whenever I will discuss article 25, 26, 27, 28, those limits to liberty I will discuss. Absolute sense में नहीं है, ये बात समझ पा रहे हैं। You are free to do things provided you are not violating others right. उसकी भी लिबर्टी है। आपका राइट टू प्रोटेस्ट तो है, उसका राइट टू मूवमेंट भी है। दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ये बात समझ पा रहे हैं। देन इसी को आगे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। वी डिस्कस लिबर्टी एंड नाउ वी विल डिस्कस टर्म इक्वालिटी। और इक्वालिटी का मतलब देखिए यही है, सिंपल सेंस में बता रहा हूं कि एब्सेंस है किसकी, स्पेशल प्रिविलेजेस की। कि पहले जो वो ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम होता था, व्हाइट्स को क्या मिलता था, प्रेफरेंस मिलता था। आप उसमें लैटिन यूज कर देते थे और इंडियंस उससे क्या होते थे, बाहर हो जाते थे। तो देखिए एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज फॉर एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये जो आप बताते हैं कि जैसे श्रीलंका में जो सिंघलीज हैं और जो तमिलियंस हैं, सिंघलीज के लिए जो पासिंग मार्क के कम है, तमिलियंस के लिए क्या है ज़्यादा है। तो ये कुछ स्पेशल क्या है, प्रिविलेजेस हैं, आपने एड ऑन कर दिए हैं, जिसकी वजह से एक सेक्शन को ऐसा लग रहा है कि वो इक्वल फुटेज पे नहीं है, वो अनइक्वल है। लाइक हिंदी को आप कंपलसरी कर दिए यूपीएससी एग्जामिनेशन में और उसमें 200 नंबर रख दिए, ये क्या हो जाएगा, हाँ इनइक्वल मतलब हो जाएगा। मतलब लोगों को लगेगा कि आवर मदर टंग इज नॉट हिंदी। इंग्लिश को अगर आप कर दें तो शायद लोग ऐसा न बोलें, क्योंकि उनको लगेगा कि किसी की मदर टंग क्या नहीं है, इंग्लिश नहीं है। अगर आपने इसे कंपलसरी बनाया तो सबके लिए क्या है, बराबर है। बट सीसैट को लेकर लोगों ने डाउट क्रिएट कर दिया था। सो व्हाट आई एम सेइंग कि इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस फॉर ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ व्हाट सोसाइटी, एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ व्हाट अपॉर्चुनिटी। सो दो तरह की इक्वालिटी आपको गारंटी की जा रही है। वन इज इक्वालिटी ऑफ व्हाट स्टेटस एंड सेकेंड इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड और नॉट? ये बात समझ में आ रहा है सभी को, यहां तक कोई डाउट नहीं है। देन देखिए इक्वालिटी की बात हो गई, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी की बात में और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ व्हाट अपॉर्चुनिटी। सो ये जो आर्टिकल्स हैं देखिए डील करते हैं किससे, सिविक इक्वालिटी से। 39 बी एंड सी बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी की, और आर्टिकल 19 आगे जाके डिस्कस करेंगे। 326, 325 दे आर डीलिंग विथ व्हाट पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि एक कॉमन इलेक्टोरल रूल होता है जिसमें सबका नाम क्या होता है, मेंशन होता है, irrespective of caste, irrespective of religion. Then there is a fraternity, a feeling of what brotherhood. इसकी जरूरत क्यों है? लड़ाई झगड़ा ना हो। सही बता रहे हैं, देखिए सही बता रहे हैं कि देखिए इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट बट नेशनलिज्म अभी वीक है, ठीक है। सो इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, एथनिसिटी, टोपोग्राफी, रीजन, वी शुड डिस्कस कंसीडर आवरसेल्फ एज व्हाट इंडियन। ये जो इंडियननेस है उससे प्रमोट करने के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, दिस फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी इज मेंशन इन व्हाट प्रमोट ए सेंस ऑफ व्हाट ब्रदरहुड, just to promote a kind of भाईचारा, क्लियर, उसकी बात की जा रही है। एंड दिस फ्रैटर्निटी वी बोरोड फ्रॉम वेयर, फ्रेंच रिवोल्यूशन, उसमें बात की गई थी। ये बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए ये फ्रैटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ व्हाट ब्रदरहुड, एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी बाय एन आइडिया ऑफ व्हाट सिंगल सिटीजनशिप के थ्रू। आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई यूपी का नहीं, कोई बिहार का नहीं, कोई महाराष्ट्र का नहीं, क्योंकि देखिए आप ऐसे देखें ना, जैसे ही आप क्लास में आते हैं आपस में क्या पूछते हैं, तुम कहाँ से हो, और जैसे ही पता चलता है ग्रुप बन जाते हैं। एंड सपोज समवन इज फ्रॉम तमिलनाडु, तो ही वांट्स टू इंटरेक्ट विद समवन हु कैन स्पीक तमिल, घर की याद आती है। ऐसा देखिए दैट इज अ काइंड ऑफ वेरिएशन। और इसके ऊपर एक यूनिफाइंग फोर्स है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज क्या है, एक यूनिफाइंग फोर्स है।
कि यू मे बी फ्रॉम तमिलनाडु पोस्टेड इन यूपी एंड समवन फ्रॉम लखनऊ पोस्टेड इन व्हाट चेन्नई, ऐसा हो सकता है क्या? सो ये एक तरह से क्या है, यूनिफाइंग फोर्स है, दैट इज इंडियननेस. सो फ्रैटर्निटी की बात है कहाँ पे, प्रीएम्बल में, जस्ट टू प्रमोट ए सेंस ऑफ व्हाट ब्रदरहुड. सो इसकी बात हो रही यहाँ पे. देन डियर फ्रेंड, नेक्स्ट एस्पेक्ट आई एम डिस्कसिंग विथ यू, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की है कि देखिए इसमें एक बात लिखी गई, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ व्हाट कॉमन ब्रदरहुड. और देखिए ऐसे लाइनें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं कि एक दो सवाल तो आप कैसे ही गलत करवा देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाले ही. ये कैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी में भी, और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात करते हैं डीपीएसपी में भी. वैसे ही इतना टफ एग्जाम है, और जब दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपको लगता है ऑल ऑफ द अबव. क्लियर? ऐसा फिर फ्रैटर्निटी की बात हो रही है कहाँ पे, प्रीएम्बल में भी, और ऐसी ही एक बात ड्रॉप करके आपने रखी है कहाँ पे, हाँ डीपीएसपी में भी. 6 से लेके 14 तक के बच्चों के साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 21A में भी आप बोल रहे हैं, 45 में भी बोल रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज AK में भी आप बोल रहे हैं. मतलब ये कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे ओवरलैपिंग है. क्या है? ओवरलैपिंग है. कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ नहीं है. बट वेन एवर सच क्वेश्चंस वर आस्क्ड 90% ऑफ द स्टूडेंट ने गलत कर दिया, क्योंकि एग्जाम में उन्हें लग रहा था डीपीएसपी ही है, बाहर आके पता चला क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी. एग्जाम में लग रहा था कि फंडामेंटल ड्यूटी है, बाहर आके क्या लगा, डीपीएसपी. और फिर उनको लगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. क्लियर? सो देखिए हियर आई एम सेइंग, ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे एग्जाम में गलतियां हो सकती हैं. तो देखिए जब आप प्रीलिम्स की बात करते हैं तो यू शुड नो वेरी क्लियरली कि जहाँ जहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे 2-3 मिस्टेक्स आपको इस स्टेज से फिल्टर आउट कर देते हैं. मतलब 6-7 मार्क्स और आप बाहर हो गए. क्लियर? और फिर आप यही सोचते रहे कि कट ऑफ 97 आया था, मेरा 93 था, मेरा 94 था. उससे लेके आप क्या करेंगे, मतलब कुछ नेक्स्ट ईयर यूपीएससी यही बोलते हैं कि सॉरी. तो हियर आई एम सेइंग यू शुड बी वेरी श्योर. 2021 का एग्जाम आप देने वाले हैं, तो देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं है, बट यू हैव टू एक्वायर ए काइंड ऑफ एक्यूरेसी, यू हैव टू एक्वायर ए काइंड ऑफ व्हाट प्रिसीजन, एंड दैट एक्यूरेसी दैट प्रिसीजन विल हेल्प यू टू क्रैक व्हाट प्रीलिम्स. ये बात समझ पा रहे हैं? या तो देखिए कहाँ पे, मतलब ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स में एक्यूरेसी का प्रॉब्लम हो जाता है, आपने कवर किया होता है बट मिस्टेक्स हो जाती हैं. ठीक है? और ये 4-5 मिस्टेक्स आपको क्या हो जाती हैं, वो बाहर कर देते हैं, और आप फिर नेक्स्ट 1 ईयर आपके लिए पेनफुल हो जाता है, और आपको लगता है कि वो मिस्टेक्स नहीं करनी थी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीलिम्स पे दिक्कत तब होता है जब आते हुए सवाल आप क्या करते हैं, गलत करते हैं. जो नहीं आ रहा होता है वो किसी को नहीं आ रहा होता है. नहीं, उसमें तो निगेटिव मार्किंग है, लोग अपने हाथ क्या करते हैं, पीछे खींच लेते हैं. बट ईजी क्वेश्चन आपसे क्या होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं. तो वो एक्यूरेसी आपको एक्वायर करनी है. इसलिए देखिए मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ. सो देखिए प्रीएम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रैटर्निटी हैज टू एश्योर 2 थिंग्स. फ्रैटर्निटी की जरूरत है क्यों, क्योंकि आप अपने जो फेलो सिटीजन है उनको एक रेस्पेक्ट की तरह से देख रहे हैं, उनकी कास्ट के बेसिस पे नहीं, उनके रिलीजन के बेसिस पे नहीं कि वो मुस्लिम है, वो दलित है, वो ये, ऐसा नहीं है. वी ऑल आर व्हाट इंडियन. और जब हम हर कोई इंडियन है तो सब क्या है, इक्वल है. वी ऑल आर व्हाट इक्वल, एंड वी शुड रेस्पेक्ट व्हाट फेलो सिटीजन. वी शुड कंसीडर हिज डिग्निटी. जैसे ही आप बोलते हैं कि ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, सडनली आपने किसी की डिग्निटी को क्या कर दिया, हर्ट कर दिया. तो देखिए नो वन इज अपर कास्ट, नो वन इज लोअर कास्ट, नहीं है, ऑल आर व्हाट इक्वल. ये बात समझ पा रहे हैं? सो हियर आई एम सेइंग कि प्रीएम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रैटर्निटी हैज assured 2 things, dignity of individual and unity and integrity of what nation. इसके लिए जरूरत है किसकी, फ्रैटर्निटी की. और ये जो वर्ड इंटीग्रिटी है, इट हैज बीन एडेड बाय व्हाट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रख सकते हैं आप लोग. देन एक डिबेट है डियर फ्रेंड, ये डिबेट इंपॉर्टेंट है. इस डिबेट के बारे में बता देता हूँ. 3 केसेस हैं, तीनों केसेस को समझने की कोशिश करेगा. एक बेरूबारी यूनियन केस है, एक केशवानंद भारती केस है, और एक आपका LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है. 3 केसेस है. इन 3 केसेस में 3 अलग अलग जजमेंट्स हैं. केशवानंद भारती केस को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, अभी बस रेफरेंस दे रहा हूँ. ठीक है? इस केस में इन्होंने ऐसा बोला है कि प्रीएम्बल बस आपको कुछ जनरल पर्पस के बारे में बताता है, एंड इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सिंस इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन नॉट बी अमेंडेड. इसे क्या नहीं कह सकता, अमेंड नहीं कह सकता. इट्स जस्ट एन ऑर्नामेंटल पार्ट, इट इज जस्ट अ डेकोरेटिव पार्ट. यहां तक समझ में आ रहा है अनिकेत, मनीष, नीलेश, मनप्रीत? यहां तक कोई डाउट नहीं डियर फ्रेंड्स?
देखिए यस नो बोलते रहिए, थम्स अप वगैरह देते रहिए, मतलब हाँ ठीक है। हाँ यही बात है, देखिए थोड़ा फीडबैक मिलता रहे, मेरे लिए भी फ्यूल का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 केसेस हैं। फर्स्ट इज बेरूबारी यूनियन केस, सेकेंड इज व्हाट केशवानंद भारती केस। बेरूबारी यूनियन केस मामला क्या है, जब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आई विल डिस्कस, आई विल एक्सप्लेन कि बेरूबारी यूनियन केस है क्या। नहीं है, कुछ पार्ट है बंगाल का, इंडियन साइड का, जिसको सरेंडर करने की बात हो रही है पाकिस्तान को 1960 में। नेहरू जी क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, उस समय की बात है। दैट आई विल डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। बट प्रियम्बल को लेके यहाँ पे बोला जाता है कि प्रियम्बल इज जस्ट एन ऑर्नामेंटल पार्ट, डेकोरेटिव पार्ट, इट जस्ट शोज सम जनरल गाइडलाइन, it is not an operative part, it is not a part of constitution, since it is not part of the constitution it cannot be amended। ऐसा बोला किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। बट केशवानंद भारती केस में अपने जजमेंट को रिवर्स कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस केस में बोल रहे हैं कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन, और बोल रहे हैं कि सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन बी अमेंडेड। बोले कि ये जो प्रियम्बल है ये ऑर्नामेंटल पार्ट तो है, डेकोरेटिव पार्ट तो है, बट बहुत सारे लॉस की वैलिडिटी को डिटरमिन करने में जुडिशरी को हेल्प करता है कौन, प्रियम्बल। कि अगर आपने रिजर्वेशन को लेकर लॉ बनाया, लोगों ने अगर क्वेश्चन किया कि ये इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट का क्या करता है, अपोज करता है, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द लाइट शोन बाई व्हाट प्रियम्बल। प्रियम्बल एक्ट एज अ लाइट हाउस, constantly reminding policy maker this is the path of what governance, till the time you follow the path people you bring you back, the day you deviated from the path people will throw you out, and because of that judiciary को लगता है कि एक important constituent part है कौन, preamble, and since it is a part of constitution, it is an integral part of what constitution, so it can be what amended, just like any other part it can be what amended। और सेम जजमेंट दे रहे हैं LIC वाले केस में, इसमें भी बोल रहे हैं, रीअफर्म कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेरूबारी यूनियन केस में इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केस क्या है मैं आगे आके डिस्कस करूंगा डिटेल में, और केशवानंद भारती केस भी डिटेल करूंगा, डिस्कस करूंगा जब बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि यस प्रियम्बल इज व्हाट पार्ट, सो इट कैन बी व्हाट अमेंडेड। ये बात समझ पा रहे हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। देन नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल डियर फ्रेंड, जो अगली चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज प्रियम्बल इनफोर्सिएबल है या नहीं, ये एक डाउट है। तो बोले प्रियम्बल इवन दो इट कैरीज बेसिक आइडियल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज नॉट इनफोर्सिएबल इन कोर्ट इंडिपेंडेंटली। ये की वर्ड है, ये याद रखेगा, एग्जाम में आ जाएगा तो दिखेगा नहीं। तो हियर आई एम सेइंग इंडिपेंडेंटली इट इज नॉट इनफोर्सिएबल, बट विथ सम अदर लॉज, किसी लॉ की वैलिडिटी को डिटरमिन करते हैं प्रियम्बल को यूज कर सकते हैं कौन, जुडिशरी इन कोर्ट ऑफ लॉ, एंड देन इट विल बी व्हाट इनफोर्सिएबल। प्रियम्बल इन इट्स ओन एग्जिस्टेंस इट इज नॉट इनफोर्सिएबल, बट इन कॉम्बिनेशन विद सम लॉ इट विल बी व्हाट इनफोर्सिएबल। ये बात समझने की कोशिश करिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कई बार हमसे मिस हो जाता है डियर फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि ये जुडिशरी को हेल्प करता है क्या करने में, इंटरप्रेट करने में लॉ पास बाई व्हाट लेजिस्लेचर, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो अगर कहीं पे कोई एम्बिग्विटी है, कोई डाउट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो प्रियम्बल हेल्प्स टू होम जुडिशरी टू डिटरमिन वैलिडिटी ऑफ ए लॉ दैट वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और व्हाट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये बात समझ पा रहे हैं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इसी से रिलेटेड एक और एस्पेक्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्लियर है, पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे जो किससे डील करता है, यूनियन और टेरिटरी के साथ। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक ये डील करता है किसके साथ, यूनियन एंड टेरिटरी के साथ। सो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जब देखिए यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो बात करेंगे थोड़ा सा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और कैसे ये जो 28 स्टेट्स हैं, ये 28 जो स्टेट्स हैं आपके, इन व्हाट मैनर दे गॉट इवॉल्व, दैट एस्पेक्ट ऑल्सो आई विल डिस्कस, कि हाउ दिस 28 स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे किसी का प्रमोशन हुआ है, JNK का क्या हुआ है, डिमोशन हुआ है। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये जब आप बात करते हैं यूनियन एंड टेरिटरी की,
सो देखिए यूनियन एंड टेरिटरी में हम 3 कंपोनेंट आपके साथ कवर करने वाले हैं. पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दिस थिंग दैट इज आर्टिकल 1 to 4. दिस कंपोनेंट आई विल कवर. देन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में, इसकी रिकमेंडेशंस के बारे में. एंड देन आई विल डिस्कस विद यू पीपल व्हाट इवोल्यूशन ऑफ व्हाट दीज स्टेट्स, दैट हाउ दीज स्टेट्स दे केम इनटू व्हाट एग्जिस्टेंस, किस तरह से ये स्टेट क्या हुए, इवॉल्व हुए हैं. ये बात समझ पा रहे हैं उमेश, मनीष, यहां तक कोई डाउट? कुलविंदर, यहां तक समझ में आ रही चाहिए? नहीं ठीक है, मैं लैपटॉप से दूर ही रहूंगा, लैपटॉप के पास नहीं आऊंगा अगर उससे कोई दिक्कत हो रहा है तो. ठीक है, यहां तक क्लियर है, अच्छी बात है. नॉइस इशू हो जाता है, ठीक है. अब देखिए इन 3 वर्टिकल्स में हम कवर करने वाले हैं क्या, यूनियन एंड व्हाट इट्स टेरिटरी. दैट इज पार्ट 1 ऑफ व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट आई एम गोइंग टू कवर अंडर दीज 3 वर्टिकल. वन बाय वन आई विल डिस्कस. देखिए वेन एवर एनी न्यू एंटिटी, जब भी कोई नई एंटिटी वर्ड में आती है, ए न्यू चाइल्ड इज बॉर्न, घर में जो डिबेट होता है किस बात को लेकर होता है, नाम क्या होगा, ठीक है, गुड्डू, पप्पू, ऐसा देखिए बहुत सारे नाम आते हैं माइंड में. फाइनली एक पे आप क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं. ए न्यू कंट्री वॉज बॉर्न इन 1947. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहली डिबेट क्या है, नेम, नाम क्या होगा. सम आर सेइंग नेम शुड बी आर्यव्रत, आर्यव्रत नाम होना चाहिए, भारतवर्ष नाम होना चाहिए. ऐसे बड़े बड़े बात बोल रहे हैं. नेहरू जी बोल रहे हैं कि कल तक ब्रिटिश इंडिया था, अब इसको इंडिया कर देते हैं, बिकॉज भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, मतलब इट मे नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट इमेजिनेशन ऑफ ऑल कम्युनिटीज लिविंग इन इंडिया. इट मे बी एबल टू अट्रैक्ट इमेजिनेशन ऑफ हिंदूज, बट इट मे नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट इमेजिनेशन ऑफ व्हाट Muslims, Sikh, Christians, because we to never said that this country is going to be country for whom? Hindus, it is for all. And because of that, such debate finally led to one compromise that this country, India, it will have 2 names. India, that is Bharat. क्या नाम है? India, that is Bharat. One English version and second is what? Hindi version. So Article 1 of Indian Constitution says that India, that is Bharat, shall be union of state. क्या बोल रहे हैं आप, union of state बोल रहे हैं. Similar article in case of American Constitution says that United States of America shall be federation of state. But your constitution is saying what? Union of state. So federation एक term है dear friend, एक entity है जो मिलकर बनता है. A sense of agreement among constituent part. बहुत सारे constituent part एग्रीमेंट करके जो चीज बनाते हैं उसे फेडरेशन बोलते हैं. इसमें क्लियर कट कंसेंसस होता है कि टिल नाउ वी वर एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली, नाउ वी आर क्रिएटिंग ए कॉमन एंटिटी नोन एज यूएस. सो यूएस केम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज. दे फॉट देयर फ्रीडम स्ट्रगल, दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस, एंड व्हेन दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस दे क्रिएटेड ए कॉमन एंटिटी नोन एज व्हाट, यूएस. इंडिया के केस में ऐसा नहीं है. In case of India, Britishers they created 2 independent dominion, India and Pakistan, and then you were asked to recreate what, your boundaries, India as well as what, Pakistan. Princely states were asked to join either India or what, Pakistan. After that, you reorganize what, so here states they came into existence not as a result of an agreement, but they were created by whom, central entity. So since central entity creating you, so you may not have your own independent existence. ये बात समझ पा रहे हैं? That is in case of what? India. So India, you are saying it is rather a federation of the state. It is actually what? Union of state. And union of state का मतलब ये है कि Indian state is not a result of an agreement among these constituent part known as what? These provinces, these 28 सूबास, उनके बीच में किसी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ दैट हियर यू आर सेइंग कि वेन एवर यू से द इंडियन स्टेट एंड इट्स टेरिटरी, इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ
all those entities that are mentioned in first schedule of Indian Constitution. और आप बोलें कि जब भी आप ऐसा बोलते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन्स 28 स्टेट्स, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं अभी? 8 यूनियन टेरिटरीज एंड एनी अदर टेरिटरी एक्वायर्ड बाई होम इंडियन यूनियन बाई लॉ. लाइक अंटार्कटिका में आपके कुछ रिसर्च स्टेशन हैं. Since so many years, since last 20 years, you have been using that territory for what purpose? Research purpose. And since no other country has claimed it, they have exercised their sovereignty. So because of long-term use, that research station practically belong to whom? India. So all such territories, they are the part of territory of what? India. ये बात समझ पा रहे हैं नहीं आप लोग? इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अब देखिए यहाँ तक बहुत ज़्यादा समझने के लिए नहीं है, इसके बाद थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं. जब हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं और जब आर्टिकल 3 की बात करते हैं, आर्टिकल 2 एंड व्हाट आर्टिकल 3, दोनों में नए स्टेट की बात की जा रही है कि न्यू स्टेट कैन बी क्रिएटेड, न्यू स्टेट्स कैन बी एडमिटेड. आर्टिकल 2 में भी और किस में भी? आर्टिकल 3 में. आर्टिकल 2 में आप उन स्टेट्स को एडमिट कर रहे हैं, उन स्टेट्स को क्रिएट कर रहे हैं which were not part of India at the time of what? Independence. जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया के पार्ट नहीं थे, चाहे वो दमन एंड दीव हो सकते हैं, दादर एंड नगर हवेली हो सकते हैं, पौंडीचेरी हो सकते हैं, सिक्किम हो सकते हैं, कोई भी ऐसी टेरिटरी हो सकती है जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज नॉट पार्ट ऑफ व्हाट इंडियन टेरिटरी. उनके साथ आप जो एडमिशन कर रहे हैं इंडियन स्टेट में, दैट इज अंडर आर्टिकल 2. इट डील्स विद एडमिशन ऑफ व्हाट स्टेट्स which were not earlier part of Indian Union. For example, Dadar and Nagar Haveli, Pondicherry, Sikkim, Daman and Diu, इनका जो एडमिशन हो रहा है that is under article what 2, that were not part of what Indian Union at the time of independence. This thing you people are able to understand. ये बात समझ पा रहे हैं? Then article 3 dear friend, ये डील कर रहा है. Article 3 is dealing with some other issue. It is dealing with formation of any state or change in existing state of Indian state. कि जो existing state है उनके साथ अगर कोई आप अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन, चेंज, नेम, एरिया, बाउंड्री कुछ भी करना चाहते हैं, what will apply? आर्टिकल 3 will apply. 2 में भी नया स्टेट इंडिया में आ सकता है, 3 के थ्रू भी एक नया स्टेट एड ऑन हो सकता है, बट प्रोसेस दोनों में क्या है? डिफरेंट है. One is talking about those territories which were not part of Indian Union at the time of independence. Second is talking about alteration with that part which is already part of what? Indian Union. This thing you people are able to understand or not? लाहौर को अगर इंडिया में मिलाना है तो किस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे? ये समझ पा रहे हैं? वो अलग बात है, कर पाएंगे नहीं तो ये, बट ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप कोई ऐसी टेरिटरी को इंडिया में मिलाना चाहते हैं, उसे एक नया स्टेट बनाना चाहते हैं, दैट इज अंडर आर्टिकल व्हाट 2. आर्टिकल 3 जो एग्जिस्टिंग इंडियन टेरिटरी है उसके साथ अगर आप कुछ छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो दैट इज अंडर आर्टिकल व्हाट 3. नहीं, स्टेट का रेटिफिकेशन कैसे लेंगे? मतलब स्टेट तो आप बना ही रहे हैं, वो यूपी से आप क्या कर रहे हैं? हाँ, यूपी से आपने 3 स्टेट बना दिए. एक का नाम आपने ले ही लिया पूर्वांचल, एक आपने हरित प्रदेश बना दिया, एक बुंदेलखंड बना दिया, 3 बन गए. यूपी क्या हुआ? यूपी डिस्ट्रॉय हो गया. अब यूपी पीसेस नहीं होगा. ठीक है, अब देखिए मतलब देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ यूपी नाउ दिस. तो यूपी फिर रेटिफाई क्यों करेंगे? देखिए अगर आप यूपी को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो यूपी तो यही बोलेंगे ना, उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, नो, बिकॉज यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय व्हाट यूपी. क्योंकि एटलीस्ट बिहार से आपने झारखंड बनाया तो भी आपके पास क्या है? बिहार तो है ना. देखिए बिहार की अभी आइडेंटिटी बची हुई है. अगर बिहार से आप 4 स्टेट बना दें, मिथिलांचल, ये आंचल, वो आंचल, तो देखिए और किसी का नाम आप क्या ना रखें, बिहार ना रखें, तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली विल एक्सेप्ट. दे विल से कि इट इज एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय आवर आइडेंटिटी, आवर कल्चर. तो आप पूछते हैं प्रोसेस करेंगे कि स्टेट्स आर कंसल्टेड बट देयर कंसर्न इज नॉट बाइंडिंग ऑन होम सेंट्रल गवर्नमेंट. ये समझ. जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कल मॉर्निंग में 5 AM क्लास होगी, क्या कहना है आप लोग का? मतलब बताया इन्होंने कि देखिए मेरा जॉगिंग का टाइम होता है, इन्होंने बोला मैं तो सोती रहती हूँ. तो देखिए हियर आई एम सेइंग, मैंने सबकी बातों को सुना,
सबकी बातों को सुना और ऑफिस में जाके मैंने बोला कि काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ बच्चों के साथ, बट क्लास 5 बजे ही है। मतलब फिर मैंने क्या किया, आई कंसल्टेड विद यू पीपल बट योर कंसर्न हैज़ बीन इग्नोर्ड। कई बार पेरेंट्स बच्चों से पूछते हैं ना कि गलत कौन सी गाड़ी ली जाए, और आप जितना भी जानते हैं गाड़ियों के बारे में आप सब बता देते हैं, और शाम में जब आते हैं तो भैया ऑल्टो खड़ी रहती है। तो देखिए हियर आई एम सेइंग, बिकॉज वो माइंड मेकअप कर लिया है फादर ने, बट आपसे पूछ रहे हैं, बट दैट डजंट मीन्स कि योर ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन होम। ये हो सकता है। तो इसी तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है, क्लियर हो रहा है डियर फ्रेंड, कि जो एग्जिस्टिंग एरिया है उसमें कोई अल्टरेशन आप कर रहे हैं, तो आर्टिकल 3 जो एरिया इंडिया का पार्ट नहीं है उसे आप एडमिट करना चाहते हैं किसी अलग प्रोसेस से, अलग अलग प्रोसेसेस हैं, फॉर दैट आर्टिकल व्हाट 2, ठीक है। सो एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है, क्या 2 तरह के फेडरेशन हो सकते हैं, कौन कौन से, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। देखिए एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा नहीं आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, बट देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये नहीं भूल सकते आप लोग। मतलब यही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो केवल एनसीईआरटी में है, इसी के लिए लोग बार बार बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब किस क्लास में, देखिए ये नहीं पता है मुझे, मैंने बहुत पहले पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा, तो बस स्लाइड में रखा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली जो फेडरलिज्म है 11th में मेंशन है, 9th की क्लास में भी मेंशन है, ठीक है, फेडरलिज्म के बारे में। तो वहाँ से देख सकते हैं कि उसमें इस बात को एक्सप्लेन किया गया है, होल्डिंग टुगेदर एंड व्हाट, कमिंग टुगेदर। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या अप्लाई होता है, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर। यूएस को आप बोल रहे हैं इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है, इंडिया को बोल रहे हैं इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है, बट यहाँ पर क्या है, स्टेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यहाँ पर स्टेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता डियर फ्रेंड। तो ये 2 डिफरेंस है, और ये बात देखिए केवल एनसीईआरटी में मेंशन है। तो जो एनसीईआरटी में रिलेवेंट चीज़ें वो मैंने स्लाइड में डाल दी हैं, कि अगर आप लोग को टाइम नहीं मिल पाया होगा क्या करने का, बिजी है आप लोग, देखिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मतलब छूटना नहीं चाहिए अगर जो आप लोग एग्जाम इस बार देने वाले हैं। मतलब आई ट्राइड माई बेस्ट कि जो भी रिलेवेंट है अलग अलग बुक से उसको मैंने स्लाइड में ही इंक्लूड कर दिया है। इट मे नॉट बी इन डिटेल्ड फॉर्म बट इट इज़ देयर। मतलब आप ये मुझे बाद में नहीं बोल सकते कि आप वाले पढ़ाई से क्वेश्चन नहीं आया, नहीं। तो देखिए इसका मैंने पूरा ख्याल रखा है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इट शुड नॉट बी आउटसाइडेड, स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशन का एस्पेक्ट है, जिसमें मतलब कि कुछ करंट नहीं है, ये जो पार्ट है वो इसी में से आने वाला है। मतलब ऐसा मैंने सोच के ही स्लाइड बनाई है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई ट्राई टू कवर इन दीज स्लाइड्स, हर एस्पेक्ट में। तो अगर इसी को भी आप करते हैं रिवीजन के लिए तो आपका पर्पस सब हो जाएगा। एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंस, बट प्रीलिम्स के लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है। अब देखिए 2 तरह की मैंने आपके साथ बात की। इंडिया के बारे में आपने बताया कि यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर वाली बात है, सही बताया। जिन्होंने बताया तो देखिए आर्टिकल 3 में बता रहे हैं कि किस तरह से स्टेट का नेम, एरिया या बाउंड्री आप चेंज करते हैं। बोले कि ऐसा कोई प्रपोजल यू कैन इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में क्या किया सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट फॉर इंट्रोडक्शन इट रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एनी सच लेजिस्लेटिव प्रपोजल दैट इज डीलिंग विथ व्हाट, चेंज in name, area or boundary of any state, it can be introduced in either house of parliament, but only with the prior recommendation of what, president. But before giving his recommendation, ठीक है, so जो council of minister होते हैं वो ड्राफ्ट को सेंड करते हैं किसे, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इस प्रपोजल को भेजते हैं किसके पास, कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के पास, कि व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका क्या कहना है, वी वांट टू चेंज योर नेम, एरिया और व्हाट, बाउंड्री। प्रेसिडेंट में फिक्स ए टाइम लिमिट, 20 days, 25 days, 30 days, whatever he may deem fit. Within that, that concerned state legislature has to express what? Its opinion. But any such opinion expressed by that state legislature is not binding on whom? President. ये बात समझा रहे हैं? तो सपोज यूपी से आपने पूछा, उत्तर प्रदेश से पूछा कि हमारे पास ऐसा प्रपोजल आया है कि आपका नाम उत्तम प्रदेश कर दें, क्या कर दें, उत्तम प्रदेश। ऐसा प्रपोजल पूछा, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा, यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास प्रपोजल आया कि योर नेम शुड बी चेंज एज व्हाट, उत्तम प्रदेश। तो उनका आंसर क्या होगा यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में, हाँ कर दीजिए, क्योंकि काम तो इसका तो नाम से हो जाएगा, दे विल से कि यस ऑलराइट, उत्तम कर दिए, उत्तम कर दिए। और जब ये इंट्रोड्यूस हुआ, देखिए मतलब ये थोड़ा सा लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ,
ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग वगैरह बना लीजिएगा, नहीं ऐसा ये। तो हियर आई एम सेइंग कि जब ये इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, तो नॉर्थ के एमपीज, साउथ के एमपीज, सेंट्रल इंडिया के एमपीज, उनका कहना था ये कैसे, तो उत्तर प्रदेश कैसे, ये तो उद्दंड प्रदेश है, सो हाउ कम यू आर सेइंग उत्तर प्रदेश, दे ऑब्जेक्टेड इट। और फाइनली काफी डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, और जो नया नाम बाहर निकला दैट इज उद्दंड प्रदेश, ऐसे नाम आ रहा है। बट सेकेंड टाइम इट विल नॉट बी सेंड बैक टू वेयर, यूपी लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने के बाद, even if such bill, even if such proposal, it goes for substantial changes, there is no need to send it back to whom? UP Legislative Assembly. It means what you ask UP Legislative Assembly, Uttar Pradesh, and what you got, Uttar Pradesh. तो यूपी लेजिस्लेचर को कैसा लगेगा? डिसीव्ड, बिट्रेड, ह्यूमिलिएटेड, एम्बैरेस्ड, इस तरह से लगेगा। बट सेकेंड टाइम नहीं आपको पूछना है, व्हाट आई मीन टू से कि अल्टीमेटली इट इज इन द हैंड ऑफ होम? यूनियन। आपने आंध्र प्रदेश से पूछा कि तेलंगाना क्रिएट करने का प्रपोजल है, क्या कहना है आपका? दे सेड नो, यू सेड यस। तो देखिए, फिर व्हाई यू आस्क व्हेन यू हैव ऑलरेडी मेड अप योर माइंड यू हैव टू क्रिएट व्हाट? तेलंगाना। सो व्हाट आई एम सेइंग, स्टेट्स आर merely consulted, their concern is not binding on whom? Union. ये बात समझ पा रहे हैं? So this is a procedure. Through this procedure you can bring any alteration and modification in name, area and boundary of what? Any state. ये बात समझ पा रहे डियर फ्रेंड या नहीं? यहां तक समझ पा रहे? ठीक है। सो इन दिस मैनर आई एम सेइंग कि वी हैव टू मेंटेन this thing कि it is ultimately in the hand of whom? Union. It is ultimately in the hand of whom? Central. So states से आप कंसल्ट कर रहे हैं, बट उनके कंसर्न को नहीं ले रहे हैं, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन होम? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है नहीं आप लोग को? ठीक है। तो देखिए, ये जो एग्जांपल दिया मैंने, वो एग्जांपल लीजिएगा, दिल खोल लीजिएगा, ऐसे एग्जांपल नहीं है। तो here I am saying, just to make you people understand that states are consulted only once, you are not consulting a state twice. This thing is clear? Then next I am going to discuss with you people, dear friend, one important aspect, जिसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेरूबारी यूनियन केस में हुआ क्या बेसिकली। ये जो केस था, हाँ नहीं, आप इस तरह से समझिए, wherever it requires prior recommendation of whom? President. Any bill that requires prior recommendation of what? President. Such bill will be introduced by whom? Government member. ये बात समझ पा रहे हैं? बस ये अपने माइंड में रखिए कि जहां पर भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की क्या है जरूरत है, ठीक है। तो 1 में तो ऐसा कोई मैंने बिल की बात नहीं की, ठीक है। 3 में क्या की? बिल की बात की, जहां पे प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की क्या है जरूरत है। सच बिल हैज टू बी व्हाट? गवर्नमेंट बिल। ये बात है। सो यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या इंडिया अपनी टेरिटरीज को दूसरी कंट्री को दे सकता है? कैन इंडिया सीड इट्स टेरिटरी टू व्हाट? सम अदर कंट्री? ये एक बड़ा सवाल था, एंड दैट क्वेश्चन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन बेरूबारी यूनियन केस व्हेन देयर वाज सर्टेन पार्ट ऑफ बंगाल। उस समय 1960s की अगर बात करें, सो देयर वाज नो बांग्लादेश, देयर वाज ईस्ट पाकिस्तान या ईस्ट बंगाल आप बोल सकते हैं, और वो पार्ट नेहरू जी देना चाहते थे किसे? पाकिस्तान। ऐसी डिमांड थी। तो ये एक डिबेट बनी कि क्या यूनियन कैन सीड एनी सच टेरिटरी टू होम सम अदर कंट्री? इस तरह की बात हुई। तो देखिए, इसमें देखिए कोर्ट का क्या जजमेंट है, समझने की कोशिश करेगा कि एक एग्जीक्यूटिव के लेवल पर एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, जिनका नाम मैंने नून की तरफ से लिखा हुआ है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसके थ्रू ये बात की गई कि ये जो इनक्लेव है, सर्टेन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, दैट वी आर गोइंग टू सरेंडर हूं। हो रहा है तो अभी हुआ है, ठीक है, थैंक यू। ऐसे हाथ में इसको रखना है, यहां तक समझ, हाँ ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है?
कोई तो देखिए एग्जीक्यूटिव के लेवल पे क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है, और ये जो एग्रीमेंट हुआ है डियर फ्रेंड, इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन जा रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको लग रहा है कि ये सब नेहरू जी करते जा रहे हैं, तो मेरी क्या जरूरत है। तो एक तरह का कन्फ्लिक्ट देखा गया किसके बीच में, नेहरू जी के बीच में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हाट इंडिपेंडेंट इंडिया। कि ये जो रेफरेंस की बात होती है, जुडिशरी के पास प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाता है, ये रेफरेंस दे दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विदाउट कंसल्टिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट को कंसल्ट किए बिना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये चीज पूछ ली किससे? सुप्रीम कोर्ट से, कि क्या इंडियन गवर्नमेंट अपनी टेरिटरी दे सकता है किसे? दूसरी कंट्री को। सो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, अंडर आर्टिकल व्हाट 143। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर की सीरियसनेस को समझा कि सिंस प्रेसिडेंट हिमसेल्फ आस्क्ड विदाउट आस्किंग होम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई। क्या बनाई गई? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है डियर फ्रेंड, इन्होंने बोला कि इसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत है। अगर आप ऐसा कोई टेरिटरी देना चाहते हैं तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर से नहीं कर सकते, यू हैव टू ब्रिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। स्पेशल मेजोरिटी से ही आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 3 के लिए अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी डियर फ्रेंड, वहां पे सिंपल मेजोरिटी से आप ऐसा कर सकते थे। बट हियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेइंग if you want to cede, if you want to give certain part of India to some other country, constitutional amendment is what required. This thing you people are able to understand, and because of that finally this thing was done. Parliament ने 9th Amendment Act लाके इस बात को enforce किया। मतलब you can cede, you can give some part of territory to whom? Other country, but for that reason you need to bring what a constitutional amendment, not through ordinary majority, not through ordinary legislative power। ये बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? दिस थिंग इज क्लियर? यहां तक डियर फ्रेंड सबको समझ आ रहा है? ऑनलाइन अभी कोई वॉइस इश्यू नहीं आ रहा है डियर फ्रेंड? अविनाश, वॉइस की वजह से समझ में नहीं आया? वॉइस प्रॉब्लम अभी भी है? मनीष, रिपीट कर दूं? ठीक है, मैं ऐसा बोला था कि न्यू स्टेट्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेरिटरी। यू कैन क्रिएट न्यू स्टेट, यू कैन ब्रिंग अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन इन नेम, बाउंड्री, एरिया, एवरीथिंग इज फाइन। बट क्या आप अपनी टेरिटरी को दूसरे देश को सरेंडर कर सकते हैं? वेदर यू कैन गिव योर टेरिटरी टू सम अदर कंट्री और नॉट? This question was raised in Berubari Union case 1960. It was questioned that whether Indian executive or legislature using their ordinary legislative power, they can surrender some part of Indian territory to some other country or not. क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट कर चुके थे कौन? नेहरू जी पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ, इन ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ स्टेट्समैन ही वाज। तो ये इसको लेके ऑब्जेक्शन थी किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विदाउट कंसल्टिंग कैबिनेट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दे दिया किसे? सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिसाइड करे कि वेदर गवर्नमेंट के पास इतनी अथॉरिटी है, जस्ट बिकॉज दे हैव नंबर इन लेजिस्लेचर, कि ऑर्डिनरी लॉ की जो पावर है उसके तहत वो अपनी टेरिटरी को भी क्या कर सकते हैं? दूसरे देश को दे सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यस इट कैन बी डन, बट यू नीड टू ब्रिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिकॉज देयर स्पेशल मेजोरिटी इज नीडेड। सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ये चीज नहीं हो सकती जो आर्टिकल 3 में थी। आर्टिकल 3 में यू रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी, आर्टिकल 368 यू रिक्वायर व्हाट स्पेशल मेजोरिटी। सो इट कैन बी डन बट ओनली थ्रू व्हाट अमेंडमेंट। ये बात समझ पा रहे हैं? हाँ पूछिए। ये हाँ, मतलब ये वो टाइम है जब ये सारी डिबेट सेटल नहीं हुई है, ये शुरू का टाइम है जब टसल है किसके बीच में? बिकॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड पर्सन एंड नेहरू जी इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड पर्सन। नेहरू जी इज थिंकिंग कि वी आर फॉलोइंग ब्रिटिश सिस्टम वेयर प्रेसिडेंट इज जस्ट नॉमिनल हेड। राजेंद्र प्रसाद जी इज कंसिडरिंग कि आई एम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, आई एम नॉट नॉमिनल हेड। सो दिस नेचर ऑफ कंसल्टेशन, इसको लेके डाउट है दोनों में।
कि जो कंसल्टेशन है मुझ पे बाइंडिंग है क्या, देन इट इज डायरेक्शन नॉट कंसल्टेशन. सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज ऑफ द ओपिनियन कि बस कंसल्टेशन हो रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मुझ पर क्या नहीं है, बाइंडिंग नहीं है. ये डिबेट सेटल हुई कब जाके 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कि एक बार आप रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, मतलब तब जाके ये चीज़ें क्या हुई, सेटल हुई. बट हम जब डिस्कस करेंगे आपके साथ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो इस डिबेट को डिटेल में बताऊंगा क्लियर है कि कैसे अलग अलग इंस्टेंसेस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू ये डिफर कर रहे हैं और एक तरह का कन्फ्लिक्ट हो रहा है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ व्हाट प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दो तरह के होते हैं. एक रेफरेंस होता है कि किसी जनरल पब्लिक इशू पे आप पूछिए कि अयोध्या में राम टेम्पल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, आपका क्या कहना है, ये प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं. बट इस पर जुडिशरी हाँ या ना दोनों आंसर दे सकते हैं या कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे आप खुद देख लीजिए. ये आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बोलिए कि वहाँ पे पता करें कि मंदिर है या नहीं है. दैट इज नॉट आवर डिसीजन. बट देर आर सर्टेन मैटर वेयर सम कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस आर रेज्ड, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस. सच मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट को कुछ एडवाइस देनी पड़ती है और कई बार उस पर वो बेंच बनाते हैं. क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाते हैं कि मिनिमम 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे शुड सिट, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट मैटर को रेज किया है किसने, प्रेसिडेंट ने, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में डिसीजन देंगे. सो ये बेंच ने डिसाइड किया जब प्रेसिडेंट ने ये रेफरेंस पूछा और उसके बाद ये जो केस आया बेरूबारी यूनियन केस, उसमें ये जजमेंट आया है कि आप ऐसा कर सकते हैं बट यू नीड व्हाट अमेंडमेंट. ये बात समझ पा रहे हैं, तो ये मैटर है, याद रख सकता है. तो आज देखिए यहीं तक डिस्कस करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, वी विल स्टार्ट विद पार्ट 2 ऑफ व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो आर्टिकल 4 हम डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 आपके साथ स्टार्ट करेंगे सिटीजनशिप. यहाँ तक जो डिस्कस किया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट? हाँ बताइए. आप सेकुलर हैं या नहीं है, तो बताइए. आप देखिए सेकुलर है या नहीं है. नहीं, मैंने आपसे कहाँ बोला कि अगर आप रिलीजियस हैं तो